तो फिजिकल केमिस्ट्री अभी खत्म हो गया है. नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट्स. Do you know that the flow is like physical, then inorganic, then organic chemistry. Physical chemistry में एक टॉपिक बचा है अभी भी, सरफेस केमिस्ट्री. So which will be in your next MT. अगले MT में रहेगा सरफेस केमिस्ट्री, करेक्ट. तो एक टॉपिक बचा है फिजिकल केमिस्ट्री का, that is surface chemistry, along with metallurgy, that you know, general principles and extraction, और what all the other things are there. Surface chemistry, metallurgy, coordination compounds. These are all there for the next MT. अच्छा, and DNF block elements, very important. Now आप ध्यान से देखना, next MT में आपके पोर्शन जो होंगे, see this. So one more time, I will like tell you the portion, the topic name which is for the next MT, which has been displayed also. आपके यहाँ पे displayed भी होगा. One is surface chemistry, एक surface chemistry, that is physical chemistry. The second one is extraction, that is metallurgy. The third one is P block elements, and fourth is DNF block. Actually speaking, जो coordination compound, there is one topic called coordination compound. It's inorganic, but that is kept for the अगले MT के लिए, organic के साथ. अब जो अगला MT होगा, that is MT8. तो MT9 में होगा. Coordination compound is in MT9, but वो maybe अगर time रहा तो वो MT7 में ही cover हो जाएगा. That is MT8 में ही cover हो जाएगा. That chapter will be covered in your physical lectures in MT8 portion itself. But that will be there for MT9, coordination compounds. It's a little bit big topic. Inorganic का बहुत बड़ा chapter है. Now, as far as last year I have taken P block elements for you, S and P block. तो P block में बताया था कि 12th standard P block is multiple times more important than the 11th standard P block. Even 11th standard का P block भी बहुत बड़ा chapter था. आपने देखा था, बहुत सारे properties थे, नए-नए structures थे, आपको याद करने थे. यहाँ भी आपको बहुत अजीब सा लगेगा. You will have lot many things to study, but don't worry. Like more easy, comfortable. Now you can feel little bit comfortable. अभी तो आपको 1.5 years हो गया. Now you can ease, like chemistry आपको थोड़ा easy feel होता होगा. Comparatively with physics. Physics के comparison में थोड़ा तो chemistry थोड़ा easy feel हुआ होगा अभी तो आपको. Like one thing again I'm telling to you, यहाँ पे no calculations in inorganic chemistry. You have to memorize a lot. जैसे आप zoo में करते हो, botany में करते हो, यहाँ पे भी आपको memorize a lot. तो you have to memorize, like not data. Data memorize मत करो. Electronegativity values, no need to memorize. Bond enthalpy, no need to memorize. Enthalpy of formation, वो नहीं memorize करना है आपको. Just compare करना है. Decreasing order, increasing order. Reactions तो memorize करने पड़ेंगे, because हर एक reaction में product अलग-अलग होता है. Basically जो भी है, heat करो तो product अलग होता है. ज़्यादा heat करो तो product अलग होता है. No, there are two different temperature. Normal heating and red hot. आप P block में उधर भी पढ़े हो, 11th standard में भी. तो आपकी मेमोराइजेशन पावर थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए और थोड़े लॉजिक्स, जैसे आप लॉजिक 11th स्टैंडर्ड में भी अप्लाई किए, फजान्स रूल, लैटिस एंथैल्पी, बिग कैटयन स्टेबलाइज, बिग एनियन स्टेबलाइज बाय बिग कैटयन, वो थोड़ा थोड़ा, बट इट विल नॉट बी हेक्टिक लाइक 11th. यहाँ पे थोड़ा यू विल एंजॉय लिटिल बिट, बिकॉज अब जो आने वाले ब्लॉक्स हैं वो थोड़े अच्छे ब्लॉक्स हैं. लाइक नॉट लाइक हेक्टिक लाइक 11th स्टैंडर्ड का कि इतने प्रिपरेशन, एक एक के लिए वहाँ पे 12 प्रिपरेशन थे. यहाँ पे एक के लिए 1 या 2 प्रिपरेशन. यू कैन हैप्पीली से दैट. यू डोंट हैव लॉट मेनी मेथड्स टू प्रिपेयर. एक कंपाउंड के बहुत सारे मेथड्स नहीं. ओके, दैट इज वन एडवाइस. द नेक्स्ट थिंग इज P block and DNF block मेजर चैप्टर्स, इवन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स भी बहुत लाइक मेजर चैप्टर्स हैं. P block फॉर बोर्ड एग्जाम आई थिंक 13 मार्क्स. बोर्ड में इवन इफ यू आर CBSE, वॉट एवर इट इज बोर्ड, HSC हो CBSE हो, आई थिंक 13 या 12 मार्क्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स P block. फॉर एंट्रेंस एग्जाम यू कांट से एग्जैक्टली के कितने मार्क्स आएंगे, बट यू कैन से अराउंड 4 क्वेश्चंस P block के. 4 क्वेश्चन मींस देख लो, अगर 5 क्वेश्चन भी मान के चलो तो एंट्रेंस एग्जाम में दैट इज 4 into 5 20 मार्क्स. अभी तो आपको पता हो गया, नीट हो गया होगा. एवरीबॉडी नोस दैट नीट. नेवर कमिंग अंडर नीट एग्जाम, तो क्वेश्चंस अच्छे होंगे. इवन P block के भी जो क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे होंगे, इजी नहीं होंगे. तो एक माइंडसेट बना के रख लो, अभी न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, मेमोरी पावर शुड बी हाई. जैसे zoo में करते हो तो यहाँ पे केमिस्ट्री का मेमोरी पावर शुड बी हाई. ओके, दैट इज वन थिंग. इक्वेशंस रहेंगे और बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है. Even if you want to balance, you can use that method which you studied in 11th standard, oxidation number method. आता है ना आपको redox reaction में oxidation number method. एक redox reaction रहा तो how to balance, एक oxidizing agent, reducing agent, n factor रख के balance करना. If you want to do, अगर आपको बहुत interest है balancing के बिना मैं लिख ही नहीं सकता. थोड़े बच्चे होते हैं बहुत mindset fix होता है, I want to balance. Okay, यहाँ पे कोई balancing नहीं पूछेगा. Nobody will ask you. Only in CBSE ये क्वेश्चन है. CBSE में उनके बोर्ड में एक क्वेश्चन है, complete the following equation for 12th standard. I don't think यहाँ पे बहुत सारे बच्चे CBSE गए. Everybody is HSC. तो HSC में there is no question correct like complete the following.
सीबीएसई में है कंप्लीट द फॉलोइंग और बैलेंस द फॉलोइंग इज देयर इन सीबीएसई इन 12th स्टैंडर्ड. तो उनके बोर्ड्स के लिए बैलेंसिंग थोड़ा जरूरी है, बट आपके लिए नहीं है. ओके, सो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू रिमेंबर द प्रोडक्ट्स, दैट टू हाईलाइटिंग मेजर प्रोडक्ट्स, यू नो मेजर माइनर. अभी तो ऑर्गेनिक थोड़ा हो चुका होगा, ऑर्गेनिक 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा टच में हो गया आप. मेजर मीन्स द मेन प्रोडक्ट, माइनर मीन्स उसके साथ जो मिलके आता है वो हमारे लिए यूज नहीं है, उसको माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं. दैट इज बाई प्रोडक्ट व्हाटएवर यू से. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे आप पी ब्लॉक ऑफ 12th स्टैंडर्ड. अगेन पी ब्लॉक ऑफ 12th स्टैंडर्ड इज फ्रॉम, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 13th and 14th ग्रुप इन 11th स्टैंडर्ड. तो यू विल बी स्टडीइंग 15 to 18, 15, 16, 17, 18. ऑल दिस 4 आर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक एक ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत वास्ट ग्रुप इज 15 and 16. 15 and 16 is the vast group. उसमें भी बहुत ज्यादा वास्ट इज 15th ग्रुप. 15th ग्रुप इज हेवी, बहुत ज्यादा होगा पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बेटा. और एनसीईआरटी से आप एचएससी का बुक देख लेना, उसमें पेज बहुत ज्यादा है, 68 पेजेस कुछ है. पी ब्लॉक इज अराउंड 68 में 63 पेजेस. 63 पेजेस इन एचएससी. एनसीईआरटी इज अराउंड आई थिंक 35 to 40 पेजेस. तो एचएससी गिव मोर कंटेंट देन एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी इसमें डमी हो जाता है. यू आर सपोज्ड टू नो एचएससी हैज गिवन मोर एप्ट in P block than NCERT. If you want to refer, you can refer HSC for P block. उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है और बहुत सारे साइंटिफिक बुक से इंफॉर्मेशन था कि HSC में दिया है. NCERT में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिसिंग है. तो if you want to refer P block thoroughly, you can refer HSC. That's what my advice is. HSC में P block थोड़ा अच्छा है. Okay. Now we will start with this. We will be starting with 15th group. हम एक एक ग्रुप बोल के करेंगे आराम से. ओके, तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पे. 2 ग्रुप वास्ट है सिलेबस, 15 and 16, and 15 is the most fastest. बहुत ज़्यादा वास्ट is 15, then 16, 17, okay, very easy. Halogens, everybody knows. ग्रुप के तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कौन सा ग्रुप है. 15 is नाइट्रोजन ग्रुप, बहुत ज़्यादा वास्ट है उसमें. और 16 ऑक्सीजन ग्रुप, थोड़ा ओके. 17th ग्रुप is lightly, उतने रिएक्शंस नहीं है 17th ग्रुप में. 18th ग्रुप is noble gas, no reaction because they are noble gas. They don't react. तो उसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना है. 18th group is the most happiest group for you. But वहाँ पे the most worst thing about 18th group is you have to memorize the uses of all the noble gas. एक noble gas के 8 to 12 uses हैं. You have to memorize कौन सा noble gas कौन से treatment में, कौन से disease के treatment में use होता है, कौन सा noble gas like कहाँ पे use होता है. You have to memorize that. Like zoo basically. You don't know not many things in zoo. Same thing. एक animal के बहुत सारे name होते हैं whatever. Now see this. So you'll actually basically you'll be studying 3 groups in detail. 15, 16, 17. 18 noble gas उसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, उसके यूजेस पढ़ेंगे. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, वो कहाँ पे यूज होते हैं, वो ज्यादातर कहाँ पे यूज होते हैं. अगर मेडिसिन में यूज होते हैं तो कौन से मेडिसिनल ट्रीटमेंट में यूज होते हैं. दे आर ओनली यूजेस फ्रॉम दैट. ओके, रिएक्शंस ओनली फ्रॉम 15, 16, 17. और अगेन आई एम टेलिंग टू यू, एनसीईआरटी से अच्छा एचएससी में दिया है पी ब्लॉक. इफ यू वांट टू refer from HSC, is given best. P block was given so much good in your HSC. Data were also actually correct in HSC. Even NCERT में थोड़े data wrong है. That's what I feel. Okay, let us start with group 15. And this is not like last year what we have seen. Peroxide, superoxide, बहुत सारा कुछ देखे थे. आपको भी heavy लगा. This year there is no oxides like that. Okay, you can get happy that वैसे कुछ oxides नहीं है इस बार. Peroxide, superoxide, बहुत सारा liquid ammonia reaction. Lot many things we have done last year. Maybe I can say that थोड़ा last year जो किया था that was little heavy. This year what we are going to do is very light. ये उतना heavy नहीं जितना last year आपने पढ़ा था. Okay, see this. So group 15. The first thing I will write down I think what are all the things needed for you. You please note down the subtopics or whatever it is. I'm writing each thing which is important for you. So जो चाहिए मैं वही लिख रहा हूँ. I'm not writing this the whole क्या बोलते हैं whole महाभारत वो सब नहीं लिख रहा हूँ. What is important for you for NEET exam, particularly for NEET के लिए जो important है वही लिखने वाला हूँ. I will be writing only those trends जहाँ पे exception है वही लिखने वाला हूँ. जहाँ पे exception नहीं है वो नहीं होगा. Like mostly, for example, if there is no exception in atomic size, no need to write. If there is no exception in ionization enthalpy, no need to write. So where there is an exception only I am writing. You know, general trend तो आपको भी पता है. Atomic size increases down the group, ionization enthalpy decreases down the group. Those things already you know from your 11th standard periodic properties. So I am writing only exceptions जहाँ पे है वो लिख रहा हूँ. Okay? और maybe I will highlight also कि जो exams में ज़्यादा आता है I will highlight those things.
Even I have given a hint, जहाँ भी लिखता हूँ I am giving hint, melting point associated with metallic bond, boiling point associated with van der Waals force of attraction. Okay, तो वहाँ पे मैं hint भी लिखता हूँ, please make out that hint also because I am using, that means मैं boiling point explain करना हो तो I will use the concept of van der Waals force. अगर मुझे melting point explain करना है तो I will use the concept of metallic bond, so that should be clear in your mind. सर वो Sp4 O18 है कि O10? O10. It is O10. सर सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी कौन सी है? Oh, sorry. Number you leave it. It is 2. Okay, start with this p block elements. Group 15. Group 15th elements are this. Everybody know? Nitrogen, phosphorus का group है. Nitrogen group it is. तो कभी भी याद रख लेना. Already I have told last year also. जब भी कोई भी ग्रुप पढ़ते हैं मैक्सिमम वी गिव इंपॉर्टेंस टू द फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप. हर एक ग्रुप के फर्स्ट टू एलिमेंट्स बिकॉज उनके कंपाउंड्स अर्थ में बहुत ज्यादा है उनके कंपाउंड्स और उनके कंपाउंड्स की जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है. मे बी फर्टिलाइजर, मे बी मिनरल्स, मैक्सिमम मिनरल्स होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, कहीं ना कहीं यूज होते रहते हैं. जैसे कि एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन का कंपाउंड, नाइट्रोजन के तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं. एवरीबॉडी नो यूरिया, फर्टिलाइजर, नाइट्रिक एसिड इट इज यूज्ड लाइक इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होता है. नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. तो द सेम थिंग नाइट्रोजन के जितने भी हैं, नाइट्रोजन कैन फॉर्म एज मेनी ऑक्साइड्स एज पॉसिबल. एवरीबॉडी नो बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है और उसके तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं. हाइड्रोजीन रॉकेट फ्यूल, ए सॉलिड रॉकेट फ्यूल हाइड्रोजीन. और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोक्सिलेमीन, अजीब अजीब से कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, आपको भी पता होगा. इवन उसके बहुत सारे ऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. इट कैन फॉर्म लॉट मेनी ऑक्साइड्स. Now say this. So phosphorus has lot many minerals. उसका one of the best mineral we can see phosphorus का teeth enamel में है. What do you call that? Apatite family. Fluorapatite, chloropatite, hydroxyapatite, bones are all apatites. Correct. Bones को आराम से ऐसे नहीं कि आप बेंट हो गए तो बोन टूट गया, ऐसा तो कुछ नहीं है. तो all apatite, phosphorus जहाँ भी है apatite family. और नाइट्रोजन और भी तो जगह है, नाइट्रेट्स. नाइट्रेट्स को आप कुछ बोलते हो, साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर, कुछ है ना, NaNO3, KNO3. नो आर्सेनिक, इनके कंपाउंड्स उतने ज्यादा नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्सेनिक इज हाईली पॉइजनस. एवरीबॉडी नोस दैट. आर्सेनिक इज हाईली पॉइजनस और केमिस्ट्री में जो आर्सेनिक के कंपाउंड्स है वो पॉइजनस है. और अभी आपने बायो में भी देखा होगा कहीं भी आर्सेनिक को कोएंजाइम्स कोफैक्टर जैसे नहीं लेते. लेंगे तो गया, वो आदमी गया. यू कांट टेक आर्सेनिक एज अ कोफैक्टर. कोफैक्टर क्या है? Means army नहीं है तो what is the cofactor needed? So think of arsenic is one of the most poisonous element. Now antimony, I think that too also a little bit poisonous, but arsenic is the most poisonous among all. Bismuth, of course. अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ पे आप देख सकते हो down the group metallic nature increases. ये तो आप जानते हो, you already know this. और ये भी पता होगा metalloids diagonal में cross होते हैं. कोई भी क्या बोलते हैं periodic table में diagonal डालोगे तो metalloids. You can see these are metalloids. Arsenic, antimony, ये सब metalloids हैं. You know metalloids means they react with acid as well as bases to form salts and they liberate H2 gas. So अब ध्यान से देखना तो it's very clear. तो 15th ग्रुप शुरू होता है नॉन मेटल से और एंड होता है मेटल से. और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले से ही आती है. आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे पी ब्लॉक का पढ़ के रखा है, NS2NP1 to 6 और 15 का P3. करेक्ट ना? बिकॉज ऑलरेडी यू नो दिस. NS2NP1 is group 13, NS2NP2 group 14, NS2NP3 is your group 15. और आपको लिखने का शॉर्टकट भी आता है, बस the outer side का क्वांटम नंबर has to be changed. वो क्या बोलते हो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर has to be changed. ये इनको चेंज करो. दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. करेक्ट ना? यू नो क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, अजीमुद्दीन, वो सब पढ़े हो. तो जस्ट 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3 एंड यू नो दैट 4s और 4p के बीच में 3 dB तो है वहाँ पे. दैट इज हिडन, दैट यू आर सपोज्ड टू नो. हिडन ट्रूथ्स आर हैज टू बी नोन बाय यू. ओके, बहुत सारे थिंग यहाँ पे हिडन है. यू हैव टू नो बिकॉज यू आर द 2-year केमिस्ट्री स्टूडेंट ऑफ आवर्स. यू नो लॉट मेनी हिडन थिंग्स. तो यहाँ पे 5s 5p यू नो हु इज हिडन इन आफ्बा प्रिंसिपल. जानते हो ना? यू नो दैट आफ्बा डायग्राम. यहाँ पे कौन पीछे बैठा है? तो 6s 6p, तो कौन पीछे होगा? You know 4f 5d 6s 6p. You know that आफ्बा प्रिंसिपल आप जानते हो. 4f और 5d then 6s 6p comes. Okay, तो obviously तो बिस्मथ के कंपाउंड्स बहुत कम होंगे. तो मोस्टली डाउन द ग्रुप जो कंपाउंड दिखेंगे वो बहुत कम होंगे. आर्सेनिक, एंटीमनी के, बिस्मथ के उतने कंपाउंड्स नहीं है. दैट मींस दे आर नॉट दैट मच रिएक्टिव एज दीस टू, नाइट्रोजन, फास्फोरस. अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटॉमिक साइज हैज नो प्रॉब्लम, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. और इफ यू टॉक अबाउट what are all the various things, electronegativity there is no problem, down the group electronegativity decrease, ionization enthalpy down the group decreases, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. Not exceptions like what you have seen in 13-14 group, but there are exceptions in melting and boiling points. मेल्टिंग पॉइंट में क्यों एक्सेप्शन आता है? बिकॉज मेटालिक बॉन्ड पे डिपेंडेंट है वो. ध्यान से देखना, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट इज फॉर आर्सेनिक. दैट मींस आर्सेनिक कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड कंपेयर टू एंटीमनी एंड बिस्मथ. रीजन क्या होगा? एंटीमनी और बिस्मथ क्यों मेटालिक बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है? रीजन क्या होगा? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाई द मेटालिक बॉन्ड इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग इन दीस टू? रीजन इज न्यूक्लियर चार्ज. तो एंटीमनी और बिस्मथ में न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है. देख सकते हो बिस्मथ में तो और लीस्ट है, बिस्मथ तो ज्यादा मेटालिक है. मेटालिक रहना हो तो मेटालिक बॉन्ड शुड बी मोर स्ट्रॉन्गर. नो, मेटालिक बॉन्ड ऑफ बिस्मथ इज वीकर. रीजन फॉर दिस इज बिकॉज ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स. जब न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा. तो व्हाट इज द लॉजिक यू कैन यूज? इफ न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी हाई, न्यूक्लियस डजंट वांट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टू बी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग. तो न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता है. जब वो अपने पास खींचता है तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहता है कि दूसरा मेटल उसे शेयर करे. तो मेटालिक बॉन्ड बिकम्स वीक. याद रख लेना, तो मेटालिक बॉन्ड वीकेस्ट बिस्मथ में होगा. तो बिस्मथ के जितने भी कंपाउंड्स हैं उसका आराम से आप ब्रेक कर सकते हो. तो बिस्मथ के हैलाइड्स को ब्रेक कर सकते हो. बिस्मथ ऑक्साइड हाईली सॉल्युबल. तो बिस्मथ के जितने भी कंपाउंड्स हैं उसका आराम से ब्रेक कर सकते हो. इतना क्यों? शैल आई टेल यू वन सीक्रेट टेस्ट ऑफ बिस्मथ. यू नो, आप लैब एनालिसिस करते हो, क्वालिटेटिव एनालिसिस. आप आई थिंक आज तक आपको तो बिस्मथ का कोई साल्ट नहीं दिया होगा लैब में. आई डोंट थिंक एनी टीचर हैज गिवन यू बिस्मथ साल्ट. अगर बिस्मथ का कोई साल्ट दिए ना, फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैज गिवन यू BaCl3, से दिस, रख लो आपको किसी ने BaCl3 दिया है लैब में, तो ओनली टेस्ट इज जस्ट ऐड वाटर. कितना अच्छा है ना? देख सकते हो बिस्मथ का एक ही टेस्ट है आज तक लैब में, जस्ट ऐड नॉर्मल वाटर. रूम टेम्परेचर में जो वाटर है, जस्ट ऐड दैट, इट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड. याद रख लो, जस्ट ऐड वाटर, इट विल फॉर्म बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड. उसका कुछ फार्मूला है, BaOCl3 व्हाटएवर इट इज. तो थिंक ऑफ बिस्मथ के जो कंपाउंड्स है इजीली ब्रेकेबल. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. बिस्मथ के कंपाउंड्स इजीली ब्रेकेबल बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज. बिस्मथ का न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है तो उसके बॉन्ड्स खुद ही वीक है. तो कोई भी बिस्मथ का कंपाउंड्स हाईली रिएक्टिव है. दैट्स आई वांट टू हाईलाइट. बिस्मथ कंपाउंड्स आर हाईली रिएक्टिव, इजीली ब्रेकेबल, इजीली हाइड्रोलाइजेबल. यू नो, पानी को रख के ब्रेक करने को व्हाट यू कॉल हाइड्रोलाइसिस. बिस्मथ हैलाइड्स अंडरगो इजी हाइड्रोलाइसिस. बुक में लिखा होता है ना, अंडरगो ईज हाइड्रोलाइसिस. ईज मींस इजी. ओके, सो दिस इज हाईलाइट ऑफ बिस्मथ. आप किसी से भी पूछ के देखो बिस्मथ के कोई भी सॉल्ट है ना, व्हाट इज द लैब एनालिसिस टेस्ट फॉर बिस्मथ सॉल्ट? ऐड वाटर. दैट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट रिएक्शन एवर सीन इन द होल केमिस्ट्री. पानी डालो, प्रेसिपिटेट पाओ. बिकॉज़ नॉर्मली आप प्रेसिपिटेट कैसे पाते हो? कुछ रिएजेंट डालते हो, स्पेशल रिएजेंट डालते हो, टेस्ट ट्यूब हिलाते हो, तब प्रेसिपिटेट मिलता है. बट यहाँ पे टेस्ट ट्यूब हिलाने की जरूरत नहीं है, जस्ट पानी डालना, यू गेट ए प्रेसिपिटेट. दैट इज द हाईलाइट ऑफ बिस्मथ. इट इज देयर इवन इन JEE एडवांस. JEE एडवांस में भी है. बिस्मथ का अगर एक रिएक्शन है तो सिंपलेस्ट रिएक्शन इज दिस. टेक बिस्मथ क्लोराइड, जस्ट ऐड वाटर, यू गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट. अच्छा, इतना मत पढ़ लेना प्लीज. नेक्स्ट, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट है देख सकते हो? आर्सेनिक का हाईएस्ट है बिकॉज ऑफ मेटल बॉन्ड इन आर्सेनिक इज स्ट्रॉन्गेस्ट. देन कम्स एंटीमनी. एंटीमनी बिस्मथ में न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट्स. एंटीमनी में न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा ज्यादा है, बिस्मथ में 4f है. 4f है. अब तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑल दिस थिंग्स यू नो. तो बिस्मथ में न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है तो मेटालिक बॉन्ड वीक है. और व्हाट अबाउट फास्फोरस नाइट्रोजन? दोनों के बेकार है. क्यों? वो तो मेटल ही नहीं है. फास्फोरस इज नॉट ए मेटल. थोड़े बच्चे उसको मेटल मानते हैं. जो लोग मेटल मानते हैं, you can do whatever you want with you. So बहुत सारे बच्चे उसको मेटल मानते हैं, फास्फोरस को. You know that phosphorus is a non-metal considered to be. और नाइट्रोजन तो पूरा का पूरा non-metal है, वो तो गैस है. Okay, nitrogen is purely a non-metal, a gas. इसमें arsenic, antimony, they are called metal, but still they are metalloids. You know that they are metalloids coming under metalloid diagonal. अच्छा, boiling point. If you talk about boiling point, again you have an exception. See, melting point अगर हुआ तो देख लेना, उतना tough question कभी नहीं आता है melting point at all. But basically I have written because you have to know everything. Boiling point. Boiling point depends on van der Waals force of attraction. Purely van der Waals. यहाँ पे van der Waals है. That means you know what is van der Waals means. ध्यान से देखना. यहाँ पे आप देख सकते हो Sb. तो एक Sb4 दूसरे Sb4 के साथ. It is a van der Waals force of attraction between two Sb4. You know van der Waals force of attraction पढ़े होंगे आप. Van der Waals force depends on size of the molecule. When size is bigger, surface area is bigger.
मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, अगर if there are two tummy people meet each other, they can touch each other from far away. अगर दो, okay, you know that if there are two people which have a large tummy, if they want to meet, they can meet from far away because their tummy will touch to each other. उनकी जो tummy वही touch कर लेंगे, that is van der Waals force. If lean people has to touch, they have to come closer. They have to hit each other. But the tummy people can touch with respect to their bigger the tummy, from far away itself they can touch. They can say hi. The same concept applicable. यहाँ पे देख सकते हो SB4. That is the logic you can use. So see this. So SB4 has more van der Waals interaction. Maybe SB4 का surface area ज़्यादा होगा. They have more surface area. So SB4 has more surface area, more van der Waals interaction. Next come bismuth का surface area. Next arsenic. फास्फोरस नाइट्रोजन वो तो आपको पता है छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी सरफेस एरिया भी छोटी होगी, उनका वैन डर वाल्स भी छोटा है. तो मेल्टिंग पॉइंट में हाईएस्ट इज आर्सेनिक, दैट्स ओनली हाईलाइट यू कैन सी. दूसरा सब तो सेम है, देखो सब सेम है. मेल्टिंग पॉइंट में हाईएस्ट इज आर्सेनिक और बॉइलिंग पॉइंट में Sb. तो दैट मींस आई कैन से आर्सेनिक की मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट. आर्सेनिक का मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है और बॉइलिंग पॉइंट मींस वैन डर वाल्स ऑफ एंटीमोनी इज हाईएस्ट. तो वैन डर वाल्स किसकी हाईएस्ट है? एंटीमोनी की. You know antimony is called Sb. आपको पता होगा इसको आर्सेनिक बोलते हैं. Sb is antimony. Sb का एक्चुअल नाम स्टिब्नम. स्टिब्नम आई थिंक कुछ इंग्लिश नेम इज एंटीमनी कुछ है, तो इट इज स्टिब्नम. एग्जिस्टेंस, एवरीबॉडी नो एग्जिस्टेंस. पहला एलिमेंट गैस है, सबको पता है नाइट्रोजन इज अ गैस एंड ऑल अदर्स आर सॉलिड्स एंड ऑल अदर्स आर टेट्राएटॉमिक सॉलिड्स. देख सकते हो दे आर इन टेट्राएटॉमिक. वी विल डिस्कस इन डिटेल फास्फोरस कैसा होता है, वी विल डिस्कस दैट आल्सो. नाउ सी दिस. सबके स्ट्रक्चर्स नहीं, फास्फोरस का क्यों? ऑलरेडी आई टोल्ड फर्स्ट टू एलिमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट. मैंने पहले ही बोला है कि फर्स्ट टू एलिमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट. यहाँ पे थोड़ा इंफॉर्मेशन आई विल स्टार्ट. नाउ सी दिस. इफ यू टॉक अबाउट फास्फोरस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फास्फोरस, नॉट इवन टू, थ्री टाइप्स. फर्स्ट व्हाइट फास्फोरस, इसको येलो बोलते हैं, थोड़े बुक्स में येलोइश व्हाइट बोलते हैं. See this, how much colorful. Whitish yellow मत बोलना. See, it is yellowish white. Yellow बोलते हैं और थोड़े बुक्स में white दिया है और थोड़े बुक्स में yellowish white दिया है. तो if somebody say yellowish white, that is white phosphorus. Okay. Now, this very important. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. It is a discrete molecule. हाँ इतना बस, आप इतना स्टॉप कर देना, अगर लिखना हो तो बाद में लिख लेना. सी दिस. नाउ फास्फोरस के भी बहुत डिफरेंट कैटेगरीज हैं. बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अलोट्रोप्स. एवरीबॉडी नो अलोट्रोप्स. आई थिंक सेम एलिमेंट एग्जिस्टिंग डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड अलोट्रोप. कार्बन के अलोट्रोप्स है ना, अरे लास्ट ईयर पढ़े थे आप, ग्राफाइट, डायमंड, फ्लोरीन. द सेम थिंग यहाँ पे भी अलोट्रोप्स है. फास्फोरस के देख सकते हो, फास्फोरस के अलोट्रोप्स है व्हाइट फास्फोरस, दैट इज आल्सो कॉल्ड येलो और येलोइश व्हाइट. दूसरा रेड फास्फोरस और तीसरा ब्लैक फास्फोरस. I have not drawn black. Black is most toughest to draw. I will try my best. Black is the most toughest to draw. Okay now. See this. It's like a crow flying structure. Now ध्यान से देखना. White phosphorus आप देख सकते हो. White phosphorus में what is the thing which you have seen comparison is? White phosphorus देखना बेटा please. इसमें से आते हैं questions आते हैं, ध्यान से देखना. This is allotropes of phosphorus. The same element or molecule existing in different crystalline forms. व्हाइट फास्फोरस कैसा दिखता है देख सकते हो. इट इज इन लाइक अप्रोच ऑफ टेट्राहेड्रल. इट्स ए टेट्राहेड्रॉन, देख सकते हो. इट्स मीथेन जैसा, अमोनिया जैसा. वेरी गुड एग्जांपल इज अमोनिया. नाइट्रोजन में लोन पेयर है, आप पढ़े होंगे 11th स्टैंडर्ड में VACPR थियरी. सेम थिंग. तो यहाँ पे भी फास्फोरस है, लोन पेयर है. इट इज इन टेट्राहेड्रल फॉर्म. कैसे? 3 सिग्मा बॉन्ड्स देख सकते हो. एक फास्फोरस के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, एक लोन पेयर है. तो एवरीबॉडी नो 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर है और अगर एक लोन पेयर है तो दैट इज 4, दैट इज sp3. पढ़े होंगे आप शॉर्टकट 11th स्टैंडर्ड में. This 4 is called hybrid orbitals. Number of hybrid orbitals. 3 sigma bond pair और एक lone pair रहा तो 4 sp3. So it's very important. They will ask you this question. What is the hybridization of phosphorus in white phosphorus? ये पूछ सकते हैं. तो phosphorus का hybridization क्या है? sp3. और ये भी पूछ सकते हैं और कभी-कभी twist करके पूछते हैं. sp3 डायरेक्टली नहीं पूछते हैं. What is the percentage of p character? They ask you. So what is the percentage of p character? You know, 25% yes. और 75% P. You know sp3 में 1:3 रेशियो. कभी-कभी घुमा फिरा के पूछते हैं क्वेश्चंस. You know नीट एग्जाम्स, नीट में तो ऐसे रहेंगे क्वेश्चंस.
So you should be very careful. It is sp3, 25% S and 75% P. Next, angle. Now that is a problem. Normally sp3 का angle कितना होता है? 109 degree 28 minutes. यहाँ पे वो नहीं है. It is 60 degree because of high strain in the molecule. पूरे bonds are very close. Each and every bond is very close. Okay, उसकी वजह से यहाँ पे angle strain develop होता है. That means it want to relieve itself. मॉलिक्यूल अपने आप को 109 बनाना चाहता है, बट है 60 में वो 109 बनना चाहता है, तो ऑब्वियसली इट्स हाईली रिएक्टिव. वो अपने बॉन्ड्स को तोड़ना चाहता है. इट रिएक्ट वेरी फास्ट. इवन इट रिएक्ट फास्ट विथ होम? मॉइस्चर, एयर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है. एयर में O2 इज देयर, N2 जो भी है, मॉइस्चर H2O तुरंत रिएक्ट कर लेता है. इट इज हाईली रिएक्टिव बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन. एक्चुअली 109 रहा तो देयर इज नो एंगल स्ट्रेन. अगर आप ऑर्गेनिक GOC पढ़े होंगे तो वहां पे मोस्टली सिखाते हैं 109 डिग्री इज कॉल्ड फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन. साइक्लोहेक्सेन में सिखाते हैं अगर आप थोड़ा पढ़े होंगे तो. ओके, तो एनीथिंग इज बिलो 109 और अबव 109 इज कंसीडर्ड टू बी एंगल स्ट्रेन इन केमिस्ट्री. ओके, तो याद रख लो इसको एंगल स्ट्रेन बोलते हैं. तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल वांट टू बिकम 109 और वो तो sp3 में है तो 109 बनना चाहेगा, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव है. तुरंत अपने बॉन्ड्स को तोड़ लेता है, किसी और से रिएक्ट कर लेता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. P4 व्हाइट फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन 60 डिग्री. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, since it is highly reactive, it is stored under water. क्योंकि वो तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, मोस्टली ऑक्सीजन N2 एयर से रिएक्ट करता है, तो it is stored under water. Very important. और ध्यान से देख लेना, तो उसके तीन फॉर्म्स हैं. रेड फास्फोरस, तो which is more reactive is white phosphorus. क्यों? रेड फास्फोरस में भी तो वही स्ट्रक्चर है, देख सकते हो. रेड फास्फोरस also have the same structure of white phosphorus. Why that is not reactive? Reason, it has a chain. तो one support another. तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को सपोर्ट करता है. इट जस्ट लाइक चेन अप्रोच. आप देख सकते हो चेन में से मैंने कैसे ड्रॉ किया. मैंने एक लोन पेयर को एरेज कर दिया और उसको बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया. यू कैन सी दिस. सो व्हाट आई हैव डन, आई एरेज वन लोन पेयर और उसकी जगह दूसरी मॉलिक्यूल को रख दिया, देख सकते हो. फिर सेकंड मॉलिक्यूल का लोन पेयर हटा दिया, तीसरी मॉलिक्यूल को लाके रख दिया. दैट मींस इन केस ऑफ योर रेड फास्फोरस वन मॉलिक्यूल, वन P4 सपोर्ट्स अनदर P4. इट्स लाइक ए चेन अप्रोच. एक P4 दूसरे P4 को सपोर्ट करता है, उसको ब्रेक करना मुश्किल है. बट ये वैसे नहीं, ए सिंगल P4 है. सिंगल P4 रिएक्ट फास्ट देन ए चेन ऑफ P4. इट्स अ पॉलीमर. रेड फास्फोरस इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाइट फास्फोरस. ध्यान से देखना, ऐसे नहीं कि रेड फास्फोरस रिएक्टिव नहीं है, वो भी रिएक्टिव है, बट मोस्ट रिएक्टिव इज व्हाइट फास्फोरस बिकॉज ऑफ सिंगल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल. वो अलग अलग एक मॉलिक्यूल है, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव. नाउ सी, ये भी वही है sp3, सेम थिंग एवरीथिंग. स्ट्रेन है इसमें भी, बट एक P4 दूसरे P4 को सपोर्ट करता है, इसलिए रिएक्ट जल्दी नहीं कर पाता है. वहां पे P4 अलग सा है, इसलिए रिएक्ट तुरंत कर पाता है. नाउ इन केस ऑफ ब्लैक फास्फोरस, यू आर सपोज्ड टू नो व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस. ब्लैक फास्फोरस, इट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर. तो द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस इज अ ब्लैक फास्फोरस. इट हैज अ ग्राफाइट लाइक स्ट्रक्चर. वहां पे लिख लेना आप नोट्स में. वी कैन नॉट ड्रॉ स्ट्रक्चर बिकॉज़ इट इज टफ. लाइक क्रो फ्लाई हो जैसा एक स्ट्रक्चर होगा. इट्स लाइक क्रो फ्लाइंग स्ट्रक्चर्स. यू आर सपोज्ड टू नो एक बर्ड फ्लाई हो जैसा होगा. तो इट हैज अ ग्राफाइट स्ट्रक्चर, भूलना मत. तो ब्लैक फास्फोरस की स्पेशलिटी देखना, इट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर. लेयर बेल्ट जैसे ग्राफाइट होता है ना, लेयर अनदर लेयर अनदर लेयर, यू नो, शीट्स ऑफ लेयर्स. और दैट मींस यहां से एक हाईलाइट भी हो सकता है. इफ इट इज मिमिकिंग द ग्राफाइट लेयर स्ट्रक्चर, इट्स वेरी क्लियर ग्राफाइट हैज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन. You know that graphite is a good conductor of electricity. So black phosphorus is also a good conductor of electricity. तो अभी आपको दो कॉन्सेप्ट मिल गए. Black phosphorus is also good conductor of electricity because it looks like graphite. Its structure is exactly like a graphite structure. It has a layer structure. It is the most stable. क्यों layer की वजह से stable? Because one layer support another layer. That layer support another layer. तो layer means more van der Waals force. More the layers, more the van der Waals force. Higher the van der Waals force of attraction, more stable the molecule. तो most stable, कभी भी पूछेंगे, they will ask you this question. Most reactive phosphorus is white phosphorus. Most thermodynamically stable phosphorus is black phosphorus. हाँ, like somebody is asking doubt, I think. From which center? Sir, Ola. Sir, in red phosphorus, you said that phosphorus is sp3 hybridized, but the middle phosphorus is sp3d2. Which one? 6 bonds are formed. The middle phosphorus, na? 6 bonds. In case of this is sp3. If you take this bond, लोन पेयर हटा के मैंने उसको बॉन्ड पेयर बनाया.
हाँ, that means there are two hybridizations. Correct. There are two hybridization in that phosphorus. तो यहाँ पे sp3 है, दूसरा sp3 I think one. Sir. हाँ. Sir, at the junction there should be two phosphorus. In the textbook it is given. Meaning? Sir, one phosphorus of one molecule and other phosphorus of other molecule should be combined by a single bond at the junction. That means you are saying structure is like this. ऐसे है, देखना. हाँ सही है. This is the structure. I think this is the correct structure. Please ये erase कर लो. ये structure नहीं है. Okay. Thank you for saying me this is the correct structure. This one was the correct structure. I think I have drawn 6 valency डाल दिया phosphorus को. You know that phosphorus can have maximum 5. Maximum 5. So this is the correct structure. Two separate units joined together. मैंने एक ही phosphorus को दोनों में join कर दिया. So please, this was the correct structure. Sir. हाँ. This is correct. So white phosphorus. Sir. हाँ. In the case of white phosphorus, you said that it is stored under water, but it even reacts with moisture. No, it is correct. It is correct. But moisture means it is like moisture should be at higher temperature condition. It like mostly steam से react करता है. Basically steam, not exactly moisture. So please, this is the correct structure. Okay, उसका correct structure ये है. दो separate molecule. That is a mistake I did because this is separate white phosphorus. This is separate white phosphorus. Now see. तो आप देख सकते हो which is most reactive phosphorus? White. Which is most stable phosphorus? Black. तो वो stable नहीं बोलेंगे, thermodynamically stable. Which is most thermodynamically stable phosphorus? Black. तो because of layer structure, it has a graphite. It mimics the graphite. तो it is good conductor. कभी भूलना मत. Black phosphorus is the most good conductor of electricity. It's same as graphite. They will ask you this question. And even from white phosphorus, if you want, you can show magic. Because it is a क्या बोलते हैं? It is a colorless liquid. सर. हाँ. सर ब्लैक phosphorus में phosphorus का hybridization क्या होता है? Black phosphorus में phosphorus का hybridization, it is graphite. तो sp2. Graphite, it is same as graphite. It is sp2. It has a layer structure. It is same as graphite. तो याद रख लेना phosphorus के 3 forms हैं. That is white or yellow. Red or red violet. Third is black. Most stable is black. Black is graphite structure, good conductor of electricity, and white phosphorus is the most reactive form of phosphorus. तो आप एक मैजिक भी दिखा सकते हो अगर white phosphorus आपके पास है ना. White phosphorus is a colorless liquid भी है. अगर आप उसको चाहो तो liquefy भी कर सकते हो. It's a colorless white liquid. ध्यान से देखना. See this. What you can do is कोई भी चीज, whatever the thing object is, अगर आप उसको व्हाइट फॉस्फोरस में अंदर रखोगे, उसको बाहर उठाओगे, वो तुरंत जलेगा. See this logic. कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर व्हाइट फॉस्फोरस के अंदर रखोगे, उसको उससे व्हाइट फॉस्फोरस से बाहर उठाओगे, तो ऑब्वियसली वो व्हाइट फॉस्फोरस उसके अंदर चला गया होगा, दैट ऑब्जेक्ट के अंदर. तो उसको बाहर उठाओगे, एयर में दिखाओगे, तो तुरंत जलेगा. तो दिस इज लाइक एन मैजिक यू कैन शो. बिकॉज व्हाइट फॉस्फोरस एक्चुअली अगर आप उसको लिक्विफाई करोगे, व्हाइट फॉस्फोरस को सॉलिड है, इफ यू लिक्विफाई दैट इट इज गोइंग टू बी व्हाइट कलरलेस लिक्विड. तो लोगों को पानी दिखेगा वो, बिकॉज लोग एलोट्रोप नहीं जानते हैं, केमिस्ट्री नहीं जानते हैं, एलोट्रोप नहीं आता है उनको, तो उनको वो पानी दिखेगा. तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी थिंग रैंडमली एक फोटो रख लो ना, आपकी फोटो रख लो, उसमें ऐसे डुबो दो, ऐसे बाहर उठाओ, फोटो चलेगा. तो यू कैन शो दैट लाइक दिस इज अ मैजिक. यू आर डूइंग मैजिक यूजिंग फास्फोरस एलोट्रोप. उनको नहीं, उतना नहीं पता है ना उनको, सामने वालों को एलोट्रोप लेके आके मैजिक कर रहा है. तो यूजिंग दिस यू कैन डू वन मैजिक ट्रिक ऑफ एलोट्रोप. बिकॉज व्हाइट फास्फोरस में जो भी चीज को आप अंदर रखते हो, तो कवरिंग सब व्हाइट फास्फोरस हो जाएगा उसमें. इसमें व्हिचएवर इन योर डिप ना, कवरिंग तो उसका ही होगा ना. उसका अगर बाहर उठाओगे, एयर से वो रिएक्ट करेगा. जैसे एयर से रिएक्ट करेगा, वो ग्लो होने लगेगा. जैसे मींस पेपर या जो भी है, फोटोग्राफ जलने लगेगा. तो पीपल विल बिलीव यू बिकॉज
वो तो व्हाइट कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड से कुछ जला रहे हो तो पीपल विल सी यू। नाउ सी दिस वन मोर थिंग, सी आई थिंक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस रेड फॉस्फरस और एक्यूरेट स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड भी बीच में नहीं है, ये जो बॉन्ड है वो भी बीच में नहीं है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। एनसीईआरटी में जो बीच में जो बॉन्ड है ना वो भी नहीं है बेटा, वो भी नहीं है, बिकॉज़ फास्फोरस की वैलेंसी 3 है, 1 2 3, करेक्ट? यू कैन एबल टू सी दिस, बीच में बॉन्ड नहीं है ना, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो यहाँ का जो फास्फोरस है वो भी 3 बॉन्ड्स है, लोन पेयर, ये तो कंटिन्यू होता जाएगा। सी दिस इज विल कंटिन्यू, ये तो कंटिन्यू होता रहेगा। आप ऐसे कर दो, उसको मूछे जैसे डाल देना। Normally we put mustaches at the ends. That indicates it's a polymeric structure. Mustaches indicates the polymeric structure. यहाँ पे एक मुस्टैच, वहाँ पे एक मुस्टैच डाल दो, तो आप ध्यान से देख सकते हो फास्फोरस के 3 वैलेंसी है और एक लोन पेयर है, तो sp3 है। Now it is sp3। फास्फोरस के 3 देख सकते हो बेटा, फास्फोरस के 3 बॉन्ड पेयर्स है और एक लोन पेयर है, यहाँ भी 3 बॉन्ड पेयर है और यहाँ पे एक लोन पेयर है। और लोन पेयर को ऐसे रख लो, थोड़ा ऐसे रख लो ना, बिकॉज़ लोन पेयर लड़ाई ना करे, बिकॉज़ अगर लोन पेयर एक ही जगह पे होगा दे विल टच ईच अदर, सो लेट देम लाइक दिस। ओके, लोन पेयर को ट्रांस में रखो, ट्रांस लोन पेयर्स। तो डोंट वरी, ये फास्फोरस के ग्रुप में आप पढ़ोगे, दैट इज फास्फोरस जब आएगा ना उसके बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे। अब अगेन आई एम टेलिंग हियर ताकि मैं वहां रिपीट ना करूं। तो यू नो दैट रेड phosphorus also have sp3 hybridization, but why white phosphorus is more reactive? It is a single molecule, where red phosphorus is less reactive because it is a chain, so one molecule support another. Now so next entering into oxides, now very important, abhi we have to enter into the topic, but abhi main topic mein enter nahi hua main, please let me enter action with air. Everybody know when you talk about air, it is basically combustion. कोई भी एलिमेंट को एयर से रिएक्ट करवाते हो तो उसे क्या बोलते हो? कंबस्शन बोलते हो, मींस ऑक्सीडेशन विद एयर। तो ऑल ऑफ देम विल फॉर्म ऑक्साइड, ये तो सब जानते हो। नाइट्रोजन फॉर्म सेवरल ऑक्साइड्स, जैसे मैं बोला था N2O, NO2, इट फॉर्म सेवरल ऑक्साइड्स। और N2O के बारे में आपको पता है? एनीबॉडी नो अबाउट N2O? छोटे क्लास में भी पढ़ते हो, लाफिंग गैस। इट कॉजेस हिस्टेरेसिस, यू नो what do you call a biological condition? बायोलॉजी हो ना आप लोग, तो यू नो दैट बायोलॉजिकल कंडीशन हिस्टेरेसिस, व्हाट यू कॉल, ओके, यूफोरिया होता है, वैसे हिस्टेरेसिस। तो याद रख लेना, लाफिंग गैस का मीनिंग ये नहीं कि वो लाफ करते हैं, नो, इट टचेस द मसल्स, या लिप्स के मसल्स को ऐसे टच करता है बस, इट जस्ट टचेस। तो ऐसे हुआ तो लोग किसी ने देखा हाँ ही इज लाफिंग, एक्चुअली ही इज क्राइंग इनसाइड। याद रख लेना, डिस्कवरर ऑफ साइंटिस्ट हैज नॉट, उसने हंसा ही नहीं, इज गिवन हिज हिस्ट्री, उसका बुक पढ़ा मैंने, इट्स डिस्कवर्ड बाय हम्फ्री डेवी, ही इज नेवर लॉक्ड इन हिज लाइफ टाइम। तो उसका कॉन्सेप्ट ये था, ही लॉक्ड इन दैट क्यूबिक मीटर बॉक्स, जो भी है 6 क्यूबिक मीटर बॉक्स में लॉक किया था, तो जस्ट इट टचेस द मसल, लिप्स के मसल को टच करता है, इट प्रोवाइड एनेस्थीसिया। तो N2O उस जमाने में एनेस्थीसिया के लिए यूज करते थे, नाइट्रस ऑक्साइड, बट लेटर ऑन दे अवॉइड यूजिंग इट बिकॉज़ इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। पेशेंट सर्जरी के पहले ही मर जाता था उस टाइम पे, बिकॉज़ इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, तो उसकी ऑक्सीडाइज हो जाती थी पूरी बॉडी, टिश्यू, सेल, एवरीथिंग गेट ऑक्सीडाइज, यू नो टिश्यू, you know biology आप जानते हो बहुत, cell, tissue, everything get oxidized, no more the patient survives। तो उल्टा anesthesia दे के ही मार देते थे उस जमाने में, इसलिए we give chloroform, you know that chloroform has been introduced later on, थोड़ा तो जानते होंगे, you know I think zoo में पढ़ते हो। नाइट्रस ऑक्साइड is the first use anesthetic, but उसको अवॉइड इसलिए किया क्योंकि N2O, इसीलिए सर्जरीज में आप देख सकते हो जब anesthesia देते हैं, they used to be done in dark, surgeries are done in dark, they don't open in daylight, ऐसे नहीं पूरे कर्टेन्स ओपन किया, सनलाइट पास किया और सर्जरी स्टार्ट किया, ऐसे स्टार्ट करेंगे रेडिकल मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा, रेडिकल, सनलाइट प्रोवाइड्स रेडिकल, फोटोलिसिस, और अंदर रेडिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे, पेशेंट विल अंडरगो लॉट मेनी चेंजेस, म्यूटेशन, व्हाट डू यू कॉल, म्यूटेशन होगा, एंड यू वांट टू डू वन सर्जरी, यू विल बी डूइंग समथिंग एल्स देयर। थिंक ऑफ N2O is anesthetic in olden days, it was been avoided, don't worry, I will write all the formulas। N2O पहले यूज होता था, अभी यूज नहीं होता है, उसके बदले क्लोरोफॉर्म यूज होता है। नो, तो आप देख सकते हो यू हैव 2 ऑक्साइड्स, वन इज +3 का, वन इज +5 का, 2 ऑक्साइड्स। और एक यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, आई विल कम टू दैट एक्सेप्शन, वेट फॉर दैट। द एक्सेप्शन इज the one of the best exception is nitrogen cannot form +5 compounds। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है,
अब डाउट आता है बच्चों को, तो आपने कैसे N2O5 लिख दिया? 100% दिस इज अ डाउट स्टूडेंट आस्क, N2O5 हाउ एग्जिस्ट? तो आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। N2O5 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, तो +5 नहीं है वो एक्चुअली, यू नो दैट, आयोनिक कोवेलेंट सबको आता है। तो N2O5 इसलिए एग्जिस्ट होता है क्योंकि वो आयोनिक फॉर्म में नहीं है, वो कोवेलेंट फॉर्म में है। तो याद रख लेना, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स। रीजन है, उसका रीजन भी बताता हूं, बिकॉज नाइट्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द होल ग्रुप, इट डजंट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, सबको पता होगा जिस एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इट कैन एक्सपेंड हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड बना सकता है। इट कैन यूटिलाइज ऑल ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन doesn't have vacant d orbital, absence of vacant d orbital, इसीलिए it cannot form +5 oxidation number compound, even though somebody tells +5 oxidation state, it is +5 oxidation state through covalent nature, not through ionic nature। अच्छा सा स्ट्रेस करके बताता हूँ, +5 oxidation state is not through ionic nature, it is through covalent nature। This is very important। नाइट्रोजन 5 वैलेंसी वाले कंपाउंड्स नहीं बना सकता है। NCl5 doesn't exist, NF5 doesn't exist, NBr5 doesn't exist, Ni5 doesn't exist, even though if they exist they are explosive, you can make bombs। तो आप NF5 को उठा लो, एक छोटे से वेसल में रख लो, थोड़ा दबाओ, फट जाएगा। That's how the terrorists apply techniques। तो terrorists are very good in p block elements। याद रख लो। तो आपको पता है मेरे से आपसे उनको ज्यादा आता है p block elements, बिकॉज उनको पता है कौन सा एलिमेंट कब फटेगा, उसकी कौन सी कंपाउंड्स कब फटेगी। तो they are the one who are very good in p block elements। Now say this। तो entering into this, अच्छा, तो नाइट्रोजन का एक्सेप्शन पता होगा, even though we say +5, it is not through ionic, it is through covalent। और नाइट्रोजन के that means all of them form 2 different oxide, एक +3 वाला है, +5, नाइट्रोजन का +5 है लेकिन उसको हाईलाइट नहीं करते बिकॉज वो कोवेलेंट के थ्रू है। Now say this। Entering into ऑक्सी एसिड्स, आपको पता होगा ऑक्सी एसिड जो डोमिनेटिंग ऑक्सी एसिड्स है वो दो ही है, एक सल्फ्यूरिक एक नाइट्रिक एसिड। क्यों? चीपली अवेलेबल है, एक तो वो चीपली अवेलेबल है, उनको बनाने में इजी टू मेक दोस एसिड्स एंड यूटिलाइज। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ध्यान से देखना, आई एम टेकिंग फर्स्ट नाइट्रिक एसिड। व्हाई नाइट्रिक एसिड एवरीबॉडी हाइलाइट्स? क्यों नाइट्रिक एसिड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं? क्यों? एनीबॉडी नोस व्हाई वी हाईलाइट नाइट्रिक एसिड मोर देन सल्फ्यूरिक? वेरी गुड, इट इज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से भी उसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। अच्छा, आपको तो अभी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश हो गया, नो यू नो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आई विल आस्क यू दोस इन बिटवीन, तो यू हैव टू बी थरो विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पढ़े होंगे ना आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? अगर ना थरो हो तो एनसीईआरटी में है, आई थिंक लास्ट 2 पेजेस ऑफ 12th स्टैंडर्ड, अगर उसमें भी क्लियर ना हो तो कोई और बुक से ले लो, कोई फॉरेन बुक से उसका कॉपी लेके आपकी नोटबुक में अटैच कर लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बिकॉज इन बिटवीन आई एम आस्क यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ फ्यू एलिमेंट्स एंड नाइट्रिक एसिड। मुझे नाइट्रिक एसिड का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस। नाउ नाइट्रिक एसिड डजंट अफेक्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कुछ नहीं कर सकते। एवरीबॉडी नोस N2 को आप हार्म नहीं कर सकते। रीजन, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाई यू कैन नॉट हार्म N2? बिकॉज कोई बोल सकता है व्हाई नाइट्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव? क्यों? बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान से देखना, नाइट्रोजन हैव ट्रिपल बॉन्ड, उसके लिए इट इज लीस्ट रिएक्टिव। नाइट्रोजन हैज अ ट्रिपल बॉन्ड, इट इज लीस्ट रिएक्टिव। तो नाइट्रोजन को आप ब्रेक करना आसान नहीं है, कोई भी एसिड नाइट्रोजन को नहीं ब्रेक कर सकता। इवन यू हैव कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, वो भी नहीं ब्रेक कर सकता है। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी नहीं कर सकता। इट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है बहुत ज्यादा है, इट इज अराउंड 946 किलोजूल पर मोल। ये रिमेंबर करना जरूरी है। in case of your HSC and CBSE they will ask you this, you have to write the data also, 946, सबका नहीं, only नाइट्रोजन। आपको सबकी वैल्यू याद नहीं करना है, only नाइट्रोजन की वैल्यू याद रखना है। तो याद रख लो, नाइट्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी इज वेरी हाई, इट इज 946 किलोजूल पर मोल बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। यू नो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पढ़े होंगे आप थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपने ये भी पढ़ा होगा, फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड एंथैल्पी इज आल्सो कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। पढ़ा होगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल रहता है तो उसका बॉन्ड एंथैल्पी इज आल्सो कॉल्ड विद द नेम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो याद रख लो, नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाईएस्ट है 946। इतना क्यों? आपने बॉटनी में पढ़ा होगा, इफ यू वांट टू फिक्स नाइट्रोजन लाइटनिंग इज यूज्ड।
You would have studied lightning is used to fix nitrogen in the form of minerals N3-. आपने पढ़ा होगा. अगर आप चाहते हो कि प्लांट्स में नाइट्रोजन अंदर जाए, प्लांट डोंट ब्रीथ नाइट्रोजन. ऐसे नहीं कि आपने नाइट्रोजन का गैस पकड़ा और प्लांट्स में ऐसे दिखाया, तो प्लांट्स इनहेल नाइट्रोजन. नो, तो नाइट्रोजन लोगे देन लाइटनिंग कम्स. लाइटनिंग इज अ लाइटनिंग, इट्स एन एनर्जी. तो वो क्या करता है, उसको नाइट्रेट बनाता है. इट मेक्स नाइट्रेट. और आपको पता है ना, जैसे वो नाइट्रेट बनेगा अर्थ के अंदर, ग्रेविटेशन अट्रैक्ट्स एनियंस एंड कैटायंस. तो पानी है अर्थ में, तो पानी में से मिलेगा तो क्या होगा, पानी का H+ इसे हाइड्रोलाइसिस करेगा, तो इट विल बिकम अमोनिया. देन अमोनिया विल बी टेकन बाय द रूट्स. Roots have capillaries, correct? They have capillaries, I think. That's what they take water. That's how they take their food, na? Through which it goes to xylem, phloem. Botany थोड़ा आता होगा, I think that little bit I also know. So ध्यान से देख लेना. So this is how nitrogen has been taken by the. I'm taking basically botany for you. So how nitrogen has been taken by the plants. तो आप डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं पास कर सकते, आप पहले नाइट्रेट के फॉर्म में पास करते हो. This is a good question. You can pass nitrogen in the form of nitride. नाइट्राइड के थ्रू पास कर सकते हो. वो नाइट्रेट बनता है, हाइड्रोलाइज होता है, पानी से H+ लेता है, अमोनिया बनता है. अमोनिया बनने के बाद कैपिलरी लेता है, then it takes in the form of ammonia. हाँ सर, नाइट्रोजन को नाइट्राइड आयन बनने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिले कहाँ से? नाइट्रोजन को नाइट्राइड आयंस बनने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिले, उसका बहुत सारा प्रोसीजर होगा बेटा. I'm not writing is the complete thing. लाइटनिंग, तो you know that there are lot many things. Even ऑक्सीजन भी है अर्थ में, वो भी रिएक्ट करता होगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन किया होगा. I'm not writing the complete things. Lot many procedure is there. आपके पास वो बॉटनी का कुछ होगा ना, नाइट्रिफिकेशन. There are lot many things which you study. नाइट्रिफिकेशन, जो भी है, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया भी है. बैक्टीरिया गिव्स कुछ बोलते हो ना, so whatever the reaction is NADPH to whatever, those reactions are there. I'm not writing is those reactions. I'm just saying you that it breaks, N2 breaks. अच्छा, if you don't want to write nitrate, you can write whatever you want. अगर आपको लिखना नहीं है तो आप ऐसे कर लो, 2 nitrogen radical. It is highly reactive, तो N dot with 3 H dot form ammonia. This is one way. This is best way you can write. See, आपने क्वेश्चन पूछा ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, वेरी गुड. तो आप ऐसे लिख लो N dot. N dot is, you know that radicals are most reactive in chemistry. आपने पढ़ा होगा पूरी periodic table में जितने भी radicals है वो highly reactive है. N dot लिख लो. That is another mechanism. N3- मिलता है ना, that is botany mechanism. कुछ nitrification through bacteria, I think, through leguminous plants, rhizobium. कुछ आप बोलते हो leguminous plants. I think that bacteria helps in this. There are 2 ways now. One is through lightning, then bacteria. Even earthworm is farmer's friend. जैसे earthworm अपनी पूरी बदन में अमोनिया लगा लेता है और वो plants में जाके it roam around. That's how earthworm helps plants to take ammonia. So that is one way to see this. So we will not discuss that much about nitrogen. And of course, nitrogen is inert gas. Nitrogen को inert gas बोलते हैं. Inert gas means it is not meaning that it comes under that group. It means it is inert to anything at room temperature. Nitrogen, ध्यान से देखना, it is said to be inert gas because ये room temperature में inert है, high temperature में reactive है. तो nitrogen is reactive only at high temperature. बहुत high temperature में किसी से भी react कर सकता है, room temperature में react नहीं करता है. इसीलिए emergency cylinders में nitrogen को I think mix करते हैं. They dilute oxygen by nitrogen in emergency cylinders. And even we breathe nitrogen, it doesn't harm us. क्यों? Our body temperature is 37 degrees. तो नाइट्रोजन doesn't harm us because to break nitrogen we need very high temperature. N2 को ब्रेक करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत है. रूम टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर या स्लाइटली हायर टेम्परेचर इज नॉट एनफ. तो याद रख लेना, नाइट्रोजन को ब्रेक करना हो यू आर सपोज्ड टू गिव वेरी हाई टेम्परेचर. अच्छा, तो नेक्स्ट फास्ट. तो आप देख सकते हो नाइट्रिक एसिड डजंट हैव एनी एक्शन ऑन नाइट्रोजन. तो नाइट्रिक एसिड किस किस के ऊपर कुछ कर सकता है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी. लास्ट ईयर आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड और नॉट. ध्यान से देखना, यहाँ पे एक हिंट है. इफ यू कैन यूज दैट हिंट, आप खुद जानते हो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, फास्फोरस एक नॉन मेटल है. Everybody know. You can say this. Phosphorus is a non-metal. Arsenic is a metalloid. Antimony again a metalloid. Bismuth is a metal. Now, non-metal के साथ जब भी आप नाइट्रिक एसिड डालते हो तो क्या होता है? आपको लास्ट ईयर मैंने एक हिंट दिया था. नाइट्रिक एसिड is a very strong acid. Everybody knows. Nitric acid is a very strong acid. What is it? What is the action of very strong acid on non-metal? लास्ट ईयर एक हिंट था.
स्ट्रॉन्ग एसिड कन्वर्ट नॉन मेटल इनटू वीक एसिड। कभी भूलना मत, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड को आप नॉन मेटल से ट्रीट करते हो तो आपको जो मिलता है वो वीक एसिड है। सी दिस, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड नाइट्रिक एसिड, ये नॉन मेटल है, इसको आप ट्रीट करोगे यू विल गेट अ वीक एसिड फास्फोरिक एसिड। तो कभी भूलना मत, दिस इज वन लॉजिक। स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ नॉन मेटल्स प्रोवाइड वीक एसिड्स। एक शॉर्टकट, strong acids on treatment with non-metal provide weak acids, not with metals, with non-metals। ये इनऑर्गेनिक का एक शॉर्टकट है। अब ध्यान से देखना, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग एसिड है आर्सेनिक, इट गिव्स आर्सेनिक एसिड, ये आर्सेनिक है। इट वाज अ शॉकिंग सरप्राइज, हाउ कैन ए मेटालॉइड फॉर्म्स एन एसिड। एक मेटालॉइड भी एसिड बना सकता है। अभी तक आपने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, अब आप पढ़ना शुरू कर दोगे। इवन मेटल कैन फॉर्म एसिड, दैट इज अ हाईलाइट। इवन ए मेटल कैन फॉर्म मेटालिक एसिड। ऑफ कोर्स वो तो मेटल नहीं है, मेटालॉइड है, तो याद रख लेना आर्सेनिक इज अ मेटालॉइड, दैट मींस आर्सेनिक इज अ मेटालॉइड, तो मोर ऑफ नॉन मेटल, इसीलिए वो एसिड बनाता है। तो आर्सेनिक इज अ मेटालॉइड, इट हैज मोर ऑफ नॉन मेटल कैरेक्टर, लेस ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, तो इसीलिए वो एसिड बनाता है। देख सकते हो आर्सेनिक एसिड। और एंटीमोनी, ध्यान से देखना, एंटीमोनी वो एसिड नहीं बनाता है, वो ऑक्साइड बनाता है। क्यों? लॉजिक क्या है? मोर ऑफ मेटल कैरेक्टर, उसके बाद ज्यादा मेटल कैरेक्टर है, तुरंत वो ऑक्साइड बना लेता है, तुरंत ऑक्साइड बना लेता है। एंटीमनी फॉर्म एंटीमनी ऑक्साइड। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप कहीं पढ़ा होगा, समवेयर यू हैव रीड दिस स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं देखा होगा एक स्टेटमेंट ऐसा कि देयर आर सर्टेन मेटल्स व्हिच फॉर्म ऑक्साइड एंड बिकम पैसिव। सुना होगा आपने, 10th में भी पढ़ा होगा। क्रोमियम, एल्यूमिनियम, एग्जैक्टली, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, एंटीमनी, दिस कम्स अंडर दैट कैटेगरी। एंटीमनी, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ये तीनों ऐसे ही करते हैं, दे फॉर्म ए ऑक्साइड लेयर, ताकि फर्दर लेयर डजंट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो ऊपर के जो लेयर है वो ऑक्साइड बना लेते हैं। कभी भूलना मत, क्रोमियम, एल्यूमिनियम एंड एंटीमनी, these three elements forms oxide layer and become passive. You know passive means उसके आने वाले next layer doesn't react, वो protective layer बना लेते हैं, oxide layer। जैसे आप पढ़ते हो ना रस्ट में, rusting of iron, galvanization, the above metal gets sacrificed, below layers get protected. The same thing, ये भूलना मत, antimony, chromium, aluminum, they form oxide layers, then because of that the below layers get protected, नीचे वाले layers protect हो जाते हैं, so it's passive oxide film. It's very important, they will ask you this. Now what about bismuth? Bismuth is the metallic, इन सबसे ज्यादा metallic bismuth ही है, और bismuth जल्दी रिएक्ट भी कर लेता है तुरंत। क्यों? bismuth का बॉन्ड वीक भी है, मेटालिक भी है, और जल्दी टूट भी जाता है। तो hence what happen, ध्यान से देखना, bismuth नाइट्रिक एसिड में completely dissolve हो जाता है, completely dissolve and form nitrate. तो bismuth soluble in nitric acid. दूसरे सब react with nitric acid. Bismuth is soluble. It directly forms salt. Because normally metals do that only. Metals form salt with acids. Everybody know. जो ज्यादा metallic होते हैं वो acid से salt बनाते हैं, पढ़ा होगा आपने। Same thing happens with bismuth. Bismuth ज्यादा metallic है, इसीलिए because ऊपर वाले दो amphoteric metals हैं, तो नीचे वाला जो बिस्मथ है वो ही प्योर मेटालिक है। Hence it directly react with nitric acid. It is soluble in nitric acid. It forms a nitrate salt. कभी भूलना मत, जो ज्यादा मेटालिक होगा वो salt बना लेगा। See this, it forms salt. और ये तो आपको पता है NO2 gas will liberate, और everybody know NO2 gas is reddish brown fumes. Oh sorry, reddish brown or brown just? हाँ, just brown. Reddish brown you see? Okay, reddish brown. So whatever color, so it is reddish brown fumes. NO2, तो NO2 liberates out in all this. तो आप देख सकते हो। So how will you list out this reaction? ये थोड़ा important reaction है बेटा नाइट्रिक एसिड के। First, nitric acid has no reaction on nitrogen. Nitric acid has action on phosphorus to form phosphoric acid. It's a weak acid. Because nitric acid is a strong acid, it converts a non-metal into a weak acid. Weak acid are also called by the name more volatile acids. Because you know that कोई भी strong acid को हम less volatile acid बोलते हैं, और कोई भी weak acid को more volatile acid बोलते हैं। Next what happens to the next concept? Nitric acid antimony के साथ, antimony form oxide layer, which is a passive layer. It protects itself. Further layer is protected. What about the bismuth? It is more metallic in character. So what happened? It completely dissolves in nitric acid, forms nitrate salt. So more metallic, जितना element is more metallic, it will dissolve in acid to form salt. So this is the clue you can use concepts. Okay. और नाइट्रोजन अभी भी रिएक्ट नहीं किया है, अभी नाइट्रोजन के रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुए। ओके, चलिए erase this. हाँ, जो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड इसकी बेसिसिटी क्या है? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी क्या है?
कौन सा सेंटर है? विच सेंटर? अकोला, हाँ अकोला। बेटा वो तो आपको आता होगा ना बेसिस टी। सी दिस फास्फोरिक एसिड ना, ये अभी पढ़ोगे आप, बहुत डिटेल में पढ़ोगे बेटा। यू आर इन हरी? बहुत डिटेल में पढ़ोगे। यू हैव अराउंड 30 और 55 ऑक्सी एसिड्स इन दिस चैप्टर। मैं आराम से पढ़ाऊंगा, अभी शुरू नहीं हुआ है चैप्टर। सी दिस, यू नो दैट दिस इज H3PO4। देख लेना फार्मूला करेक्ट है। सी दिस, देयर आर ट्राइबेसिक एसिड, n फैक्टर इज 3। इसका n फैक्टर 3 है बिकॉज़ देयर आर 3 OH, 3 H+ निकाल सकते हो। द H is attached with O, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे ट्राइबेसिक एसिड है। यू नो दैट, आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में भी, एसिड की जो बेसिसिटी है वो स्ट्रक्चर देख के बताई जाती है, फार्मूला देख के नहीं। बिकॉज इन तीनों का फार्मूला सेम है, H3PO4, H3PO3 उसमें भी 3H है, H3PO2 उसमें भी 3H है। तो नॉट बाय सीइंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला, यू हैव टू सी द स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला देख के उसमें जितने OH के बॉन्ड्स है उतनी बेसिसिटी है, याद रखना। दिस यू हैव स्टडीड इन 11, डोंट वरी, दैट विल कम इन 12th आल्सो। अभी तो चैप्टर शुरू नहीं हुआ है बेटा, नो चैप्टर हैज नॉट स्टार्टेड येट। इसकी असली रूप अभी दिखना शुरू होगा। ओके, now what you have studied is just introductory part of the chapter. Now I will enter into the chapter. Let us start P block. Okay, shall I erase this? Akola, you got this thing na? Now start P block. Group 15 अभी start करेंगे, नाइट्रोजन। Now only chapter starts. देखना। Now you will be seeing first nitrogen और nitrogen compounds. नाइट्रोजन और उसके जितने भी compounds हैं सब देखोगे, but डरो मत, I will not be taking all the compounds. वो तो उसके तो 1 million compounds हैं। You will be seeing only few compounds जो आपके syllabus में है। The first thing is you will be seeing nitrogen का preparation. How to prepare nitrogen? उसमें फर्स्ट लैब प्रिपरेशन, डोंट वरी, वी विल डिस्कस लॉट मेनी थिंग्स। ऐसे नहीं कि आई विल मेक यू मेमोराइज, आई इवन वांट यू टू बी डिबेट विद मी। ओके, सो लेट अस हैव अ गुड डिबेट। ओके, here again you have one more magic, एक और रिएक्शन है, you can use it. I think, I don't know, some of you would have used this reaction in your childhood in 10th standard to provide exhibitions में, साइंस एग्जीबिशन में, टू प्रोवाइड वोल्केनोस। यूज किया है वोल्केनोस, यू नो दैट दे कीप सैंड, वोल्केनोस के कलर डेवलप करने के लिए। यू नो वोल्केनो, लावा, हाँ, यू कैन डू दैट इन केमिस्ट्री फ्रॉम पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से कर सकते हो, माना वोल्केनो नहीं है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स वोल्केनो में नहीं है, प्लीज। इट इज द सेम कलर, जो कलर वहां पे है वही कलर को इससे यहाँ पे ला सकते हो और वो एग्जीबिशन में डिस्प्ले कर सकते हो, लाइक हाउ द लावा कम्स आउट, द सेम। Now, these reactions are very important. जो मैं लिखा हूँ, they are all previous year questions. ये पूरे के पूरे previous year questions हैं। Lab preparation, of course, ये उतना important नहीं है। ये ध्यान से देखना, जो important है, ये तीनों, this ABC is multiple times important. बहुत ज़्यादा। Every state has asked this question. हर एक state में है ये question. This ABC, D भी उतना नहीं, और ए और इसमें लॉजिक है बट उतना नहीं पूछा उन्होंने, they have not asked that much. Even this is also important, calcium, you know, bleaching powder, calcium oxychloride, you call it as a bleaching powder. How will you prepare nitrogen from bleaching powder? This is important. उसमें ये जो 3 रिएक्शन है बहुत important, ये जो C वाला रिएक्शन है सेकंड में, this is most important because you get very pure nitrogen. Very pure nitrogen, you know, very pure का meaning I don't know how much, 98% pure from the C method. C से 98% मिलता है। Okay, let us start with this C. Now, nitrogen का preparation. See this? I have written different preparation. I think I will take from reverse. मैं नीचे से ऊपर लूँगा because that's very important. Thermal decomposition. You know, thermal decomposition means कोई भी molecule को fragment कर देना. मतलब molecule को hit करके टुकड़े-टुकड़े कर देना. Fragment compound. That's what thermal decomposition means. Even आप very good example. Calcination is one of the thermal decomposition. कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना देना। सेम थिंग, ध्यान से देखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सी, व्हाट इज दिस कंपाउंड? NH4NO2।
व्हाट यू कॉल NH4NO2? NH4NO2 को आप क्या बोलते हो? इसको आप क्या बोलते हो? NH4NO2 को आप? हाँ, इट इज अमोनियम नाइट्राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमोनियम नाइट्रेट को आप डिकम्पोज करोगे ना, सीधे N2 + 2H2, लॉजिक भी मिलता है 2H2, अगर N2 हटा दो पानी हट जाएगा। You know, that means is a logic that when you decompose, thermal decomposition में जो पानी होता है, moisture, वो बाहर चले जाता है। जो भी moisture होता है वो बाहर चला जाता है। जो भी volatile oxides होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। जो भी volatile, you tell me what are all the volatile oxides? Carbon dioxide. Carbon dioxide is one of the volatile oxide. वो सब बाहर चले जाते हैं। और moisture, you can evaporate those things. याद रख लो, moisture evaporate करना, carbon dioxide को बाहर भेजना, ये सब thermal decomposition है। Now see in this case, N2 मिल गया, पानी बाहर चला गया। Now, second thermal decomposition, very important. Ammonium dichromate, you know, I think formula सब आता है ना? I think chemistry के compounds के नाम बोल सकती हो ना? K2Cr2O7 is potassium dichromate. Similarly, this is ammonium dichromate. Ammonium dichromate is the same as potassium dichromate, orange color. बोलते हो ना, वो भी तो orange color है ना? Potassium dichromate is orange crystals. The same, this is also orange color because dichromate decides the color. तो dichromate is orange color. अब ध्यान से देखना, orange color heat करोगे ना, ध्यान से देखो, heat करोगे, N2 गैस बना, पूरा decompose हो गया और मिला chromic oxide, green color solid. That means orange become green. तो that is like volcano. Volcano में यही होता है, पहले orange आता है, उसमें से green color powder ऐसे ऊपर उड़ के आता है. So green color powder sputter out in volcano. Volcano आप देखे हो तो, see आप volcano कहीं ना कहीं image देख सकते हो, YouTube में तो I think is there volcano. प्रेस करके देखो, एक लावा आएगा ऑरेंज कलर का, उसमें से ग्रीन कलर पाउडर विल कम आउट। अरे इवन दे शो दिस इन हॉलीवुड मूवीज, यू नो दैट। ओके, दे शो ऑल द कलरफुल थिंग्स। सो इन दैट केस तो यू सी दैट ऑरेंज कलर लावा होगा, उसमें ग्रीन कलर पाउडर जो होगा वो ऊपर आएगा, दैट इज दिस। सो दिस इज मींस, इसका मीनिंग ये नहीं वोल्केनो में डाइक्रोमेट है, नहीं, ये मत सोचना तो वोल्केनो जाऊंगा बाल्टी डाइक्रोमेट लाऊंगा। सी, बच्चों का यही थॉट है, सर ने बता दिया हम वोल्केनो में अमोनियम डाइक्रोमेट है, नहीं है, अमोनियम डाइक्रोमेट वहां नहीं है। दिस इज फॉर योर स्कूल एग्जीबिशंस, मतलब जो आपके स्कूल में एग्जीबिशन चलता है ना, तो वहां पे आप कर सकते हो। सैंड, वो जो भी है सैंड ले लो, उसमें से अमोनियम डाइक्रोमेट डालो, उसको हीट करो, थर्मल डिकम्पोज करो, उसमें से ग्रीन कलर पाउडर निकल गया, यू कैन शो इट टू लाइक इन फ्रंट ऑफ यू, कैन शो इट, सी दिस इज दिस ऑरेंज बिकमिंग ग्रीन। द सेम थिंग हैपेंस इन वोल्केनो बिकॉज़ यू नो दैट पीपल डजंट नो केमिस्ट्री, so they will believe you. When they believe you, you know what can happen. You know what you will do. So that's the thing. So ammonium dichromate कभी भूलना मत बेटा। तो how it is related to volcano? In the color thing. Color में से related है। कैसे? बोलो कैसे related है? It's the orange color. When you heat, it will give you green color. So you can see the same color is produced in volcano. Okay. Color wise it is same, not chemical wise. इसकी केमिस्ट्री कुछ और है, वोल्केनो की केमिस्ट्री कुछ और है, वो दोनों सेम नहीं हो सकते, कलर सेम है बस। ओके, ये स्कूल एग्जामिनेशन में यूज करता है इन 10th। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड दिस, नोबडी? ओके, नेक्स्ट। नाउ सी एंड डी, अब ध्यान से देखना, सी एंड डी दे आर द बेस्ट थिंग। सी एंड डी आपने पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता, इसको आप नाइट्रेट बोलते हो, N⁻3-, इसको अजाइड बोलते हैं। हाउ विल यू प्रोनाउंस इट? इट इज टफ टू प्रोनाउंस ना, N3-, N3- same ना, it is both. तो in saying in formula wise it is tough to say ना, कैसे बोलोगे it's formula? तो what is the difference between these two radicals? कोई बोल सकता है what is the difference in these two radicals? ये monoatomic radical, triatomic radical, so it is a compound radical. N3-, azide is a compound radical, it is explosive also. Azide is explosive in the laboratory. azides को बनाना भी explosive, उसको store करके रखते हैं बेटा, azides are explosive, वो तुरंत react कर लेते हैं, तुरंत decompose हो जाते हैं। N2 जैसे नहीं है, they are not like N2, they are azides, they are highly explosive. Azides बहुत explosive होते हैं, उनको store करना है, otherwise they will react with anyone. Now ध्यान से देखना, it is N नीचे 3⁻⁻. That means it is a -1 distributed between 3 atoms. Okay, I don't know how many of you know this. Redox reaction में आपने पढ़ा भी होगा, N3H और NH3. NH3 तो ammonia, N3H is very good. It is हाइड्रोजोइक एसिड, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजोइक एसिड। तो N3H को आप हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हो, N3H इज हाइड्रोजोइक एसिड, NH3 इज अमोनिया। आई थिंक ये रेडॉक्स रिएक्शन में आप पढ़ते हो। इट इज वन ऑफ द एक्सप्लोसिव एसिड, वो थोड़ा एक्सप्लोसिव है, हाइड्रोजोइक एसिड। मे बी हु नोस, इट इज मोर पावरफुल देन योर नाइट्रिक एसिड से भी पावरफुल होगा जाके रिसर्च करना, आप लोग तो रिसर्च करते हो ना। सी दिस
गूगल में ढूंढ के निकालना नाइट्रिक एसिड से भी हाइड्रोजोइक एसिड पावरफुल है या नहीं। क्यों? आपके वक्त तो नीट का क्वेश्चन हो सकता है, because maybe some good question paper, if they provide a good question paper they can ask some good questions, because everybody believes that sulfuric acid is king. You know that there is one more king above sulfuric acid, perchloric acid. अभी पता चलेगा, बाद में पता चलेगा P ब्लॉक में HClO4. HClO4 is more stronger than sulfuric, वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। किसको पता? उससे भी ज्यादा पावरफुल ये भी हो सकता है हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड में 3 N है, तो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो जब वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो H बॉन्ड तुरंत बाहर आएगा, H+, जहां से H+ तुरंत बाहर निकलता है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, उसी को तो आप बोलते हो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। हु नोस, तो लॉट मेनी एक्सेप्शंस है केमिस्ट्री में। नाउ सी दिस, तो ये अजाइड है। नाउ यू गॉट अजाइड एंड नाइट्रेट में डिफरेंस। नाइट्रेट मोनोएटॉमिक रेडिकल, अजाइड ट्राइएटॉमिक रेडिकल। नाउ कमिंग बैक टू दिस, तो आप अजाइड्स को डिकंपोज कर सकते हो, बल्कि अजाइड, ध्यान से देखना, छोटे अजाइड नहीं, छोटे अजाइड्स को आप हाथ भी नहीं लगा सकते हो। सी दिस, फॉर एग्जांपल यू हैव मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो वो तो अजाइड नहीं है, ओके सॉरी। तो ध्यान से देखना, जो भी छोटे अजाइड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, सो दे आर, these azides are little ionic, easily breakable. So this barium azide easily breakable because bulky cation, bulky anion, easily breakable. ध्यान से देख लेना, जो azides easily decomposable होते हैं उन्हीं को लेना है यहाँ पे। ऐसा मत करना जो tough azides है उसको लेके, sir I am heating it, I can't decompose. So don't take that azide. You have to take only those azides which are easily decomposable. तो दो azides हैं जो decomposable है, एक सोडियम अजाइड, उसको सोडा अजाइड बोलते हैं, एक बैरियम अजाइड। ध्यान से देखना, easily decomposable, and barium azide is very easily decomposable. क्यों? Barium is very bulky cation, azide is bulky anion, तो दोनों bulky हैं, तो आराम से उनको आप हटा सकते हो, easily to break those compounds, because उनकी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। पॉलीएटॉमिक है ना, N3- तो बहुत बड़ा आनियन है। ध्यान से देखना, Barium 2+ तो एक आदमी है, ये तो एक आदमी है, N3 तो 3 आदमी है, 3, तो obviously who is bigger? N3- is bigger, correct ना? Barium से भी बड़ा होगा N3-, okay, because 3 आदमी का आनियन है, वो तो बहुत बड़ा होगा, वो तो आराम से आप ब्रेक कर सकते हो, you can easily break this। तो याद रख लेना बेटा, Barium azide is easy to decompose because N3- is very big as compared to Barium 2+, easily get decomposed, gives N2 gas, तो वो भी N2 देता है। It is given in, I think आपके बुक्स में दिया है, it gives 98% pure N2, 98% pure N2। कोई बोल सकता है why this is preferable method? Anybody can tell me why this is preferred method? Akola, you can answer me why this is preferred method? Azide decomposition is preferred method because उसमें 98% pure N2 मिलता है। Why this is so? Like, Akola, you can answer. Why this is best method? Why that is considered to be the best method? कोई बोल सकता है? Sir, हाँ, sir, the side product barium will precipitate as it is solid. हाँ, in other case, Sir, thermodynamically favored reaction. thermodynamically favored reaction, very good. English अच्छा बात करते हो, but still one more concept. Your English was good. See, one more concept is, आपने तो आधी आंसर बताई थी, correct? It's very clear. They are saying that the side product get precipitated, barium get precipitated, but दूसरे में problem क्या है? पानी है. See this, पानी, you can see this, water. So everybody knows that जहाँ पानी है वहाँ problem है, because थोड़ा सा नाइट्रोजन पानी में dissolve हो जाता है. That is a problem. Some of the nitrogen dissolves in water. आप पढ़े हो ना Henry's law? आप पढ़े होंगे ना Henry's law? Solubility of gas in liquids. Gas can dissolve in liquid. P equal to, you have studied that, KH into X, partial pressure. The same concept, the same problem यहाँ पे शुरू होता है, because nitrogen यहाँ पे पानी से dissolve हो सकता है, आराम से वहाँ पे dissolve हो सकता है, इसीलिए hence some nitrogen form in the form of gas, और थोड़ा पानी के अंदर रहता है, जो पानी के अंदर रहता है उसको फिर वापस बाहर गैस बनाना little more tough. तो for that purpose यहाँ पे कोई side product नहीं है, और side product है तो precipitate है, और उससे N2 का कोई reaction नहीं है, but N2 पानी से react कर सकता है, पानी से react means dissolve हो सकता है, it can dissolve because of Henry's law. You already studied Henry's law, solubility of gas in liquids. Okay, याद रख लेना, इसीलिए वहाँ पे दोनों में पानी है और यहाँ पे पानी नहीं है, और बाजू जो है वो solid residue है, तो नाइट्रोजन उसको देखेगा भी नहीं, उसे उड़ के हवा में जाते रहेगा, तो it will not see barium. So that is most important. So tell me, what are all the three methods you can, which thermal decomposition, what are all the method by which you can prepare nitrogen using three compounds का decomposition? Ammonium nitrate, ammonium dichromate, and azides. Barium azide. Barium azide is the most ultimate method because you get pure nitrogen,
and ammonium dichromate that is mimicable to mimicable to the volcano eruption का जो color है, it is like orange converted to green and it is like orange lava in which the green color is sputter out. The green color powder is sputtering out. You know, powder getting sputter out. कोई powder आपके ऊपर आके गिरे, something like that. Now next method, entering into the next method, bleaching powder method. Bleaching powder बहुत लोग जानते होंगे bleaching powder के बारे में. Bleaching powder is one of the best oxidizing agent. Everybody know. वो जो colored clothes है उसको fade कर देता है, color को पढ़ा होगा आपने. The same thing it does. It oxidizes ammonia. ध्यान से देखना, यहाँ पे इसने ammonia को oxidize किया है. हाँ. सर जो छोटे वाले एसिड है वो आपको कभी डिकम्पोज नहीं करते. Which reaction? जो छोटे वाले एसिड है वो डिकम्पोज क्यों नहीं करते वो नहीं समझा. कौन से एसिड? I can't hear you. Small acids. Because small acids are more covalent in character. Okay, they are more covalent in character, tough to decompose. Now say this. Now अब ध्यान से देखना preparation से this. In this case, this is bleaching powder. देखना बेटा bleaching powder क्या करता है, इसको oxidize कर देता है अमोनिया को. So this ammonia become nitrogen gas. Even आप देख सकते हो, if you want to study this reaction, there is one more twisted way. These are all redox reactions basically. ये सब के सब redox है. देखा आपने? यहाँ nitrogen -3 में, nitrogen 0 में, बस. That is the shortcut technique. आप ऐसे पढ़ो ना, rather than studying memory based, do in this way. These are all redox reaction. It's a something miraculous thing. It's a redox decomposition. Normally redox reaction पानी के अंदर होता है. ये तो heat करने पर होता है. Something miraculous. These are redox decompositions. ये redox decomposition है. तो ध्यान से देखना, यहाँ पे redox reaction है. सब में redox है बेटा. आप खुद देख सकते हो. Everything is redox. That means एक redox में आप सबको पता होगा. एक oxidizing agent होता है, एक reducing agent होता है. Everybody knows this. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये bleaching powder oxidizing है. क्यों? Bleaching powder के अंदर भी बहुत डेप्थ है. उसकी पूरी फार्मूला आती होगी आपको bleaching powder की. कोई बता सकता है bleaching powder का पूरा फार्मूला? हाँ, see this. ब्लीचिंग पाउडर के अंदर भी आपने देखा होगा, इट इज CaOCl2. इसको ब्रेक करोगे तो आई थिंक यहाँ नहीं दिखता है ना किसी. CaOCl2, इफ यू ब्रेक दिस, इट इज Ca2 प्लस OCl2 2 उसमें आप देख सकते हो, इसको भी फर्दर ब्रेक करो, Cl OCl. एवरीबडी नो, यहाँ पे क्लोरीन -1 में है, यहाँ पे क्लोरीन +1 में है. यू नो दिस, ऑक्सीजन इज -2, द नेट इज -1. ये याद है आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड. तो यहाँ पे आप ब्लीचिंग पाउडर में देख सकते हो, जो भी क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइज हुआ होगा. कैसे? क्लोरीन में कौन सा वाला ऑक्सीडाइज हुआ है? आप भी देखो, यहाँ पे जो भी क्लोरीन है -1 है, तो ये वाला ऑक्सीडाइज हुआ होगा +1. So basically it's a redox reaction. See this, everything is redox reaction. It oxidizes other, reduce itself. तो यहाँ पे जो कौन सा क्लोरीन reduce हुआ होगा? See this please, +1 वाला reduce हुआ होगा, +1 बना -1 reduce हुआ है. तो एक क्लोरीन, एक तो माइनस में रहा, ये reduce हुआ है. This chlorine has been reduced. You know that ना? Oxidizing agent oxidize others, reduce itself. तो ये अपने आप को खुद को reduce किया है -1 और खुद सामने वालों को oxidize किया है. सामने वाला कौन है? अमोनिया. उसको उसने oxidize किया into gas. Okay, तो everybody know this. Oxidizing agent oxidize others, reduce itself. ये तो आपको आता होगा ना? Reducing agent reduce others, oxidize itself. तो the same concept, ये पूरे का पूरा redox है. Everything is redox here. ये तो अजीब सा redox है, ये भी अजीब सा redox है, ये भी अजीब सा redox है, ये पूरा redox है. You can see this. All this is basically redox reaction. तो आपको जो मैं सिखा रहा हूँ ना, all these are redox reaction. That is a shortcut to remember. These are redox decomposition. तो याद रख लेना. Even bleaching powder क्या करता है? तो you got an idea? Bleaching powder oxidize ammonia to N2 gas. This is one preparation method. And bleaching powder reduced to calcium chloride. वो खुद को calcium chloride बना लेता है. Now lab preparation, which is one of the worst method ever seen, because lab preparation mostly कहीं एग्जाम में नहीं आता है, कोई भी lab preparation, whatever comes it other than lab preparation. और हमारे बच्चे lab preparation को ही थरो करके जाते हैं, क्योंकि they like that word, lab preparation. तो lab लिखा है तो that only will come, but that only doesn't come. That's very important. तो अब याद रख लेना. तो अब lab preparation में very important. Anybody any logic you can give? यहाँ पे भी logic लगा सकते हो. See the logic which you can see. यहाँ पे भी एक लॉजिक है, देख सकते हो. You can use some logic here. इसको ब्रेक करो ना, अमोनियम क्लोराइड, ब्रेक दिस, अमोनिया डॉट HCl. You know, ammonium chloride is a mixture of ammonia and HCl. ये तो आता होगा आपको.
अमोनियम क्लोराइड इज सॉल्ट, इट शुड बी मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, तो अमोनिया प्लस HCl। अब नेक्स्ट लॉजिक, इसमें कौन है Na+ और NO2-। व्हाट अबाउट NO2-? NO2- की कोई जानकारी है आपको? NO2 आपने तो पहले से ही बोल दिया, नाइट्रोजन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस इट्स अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये भी रेडॉक्स है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, देखा आपने? तो ये जो NO2- है, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इट डज, इट ऑक्सीडाइजेस नाइट्रोजन। यहाँ पे जो अमोनियम है ये -3 में है, उसको 0 बना दिया उसने, इट ऑक्सीडाइजेस। और ध्यान से देखना, आप ये मत बोलना सर तो वो क्या बन गया, तो वो भी तो 0 बना, वो किस में था? सीधे वो कौन से इसमें था? +3 में था, और +3 वो 0 बन गया ना, वो रिड्यूस हो गया। ऐसे रिएक्शन के एक नाम बोलते हो, याद है आपको? रेडॉक्स में दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिलके एक हो जाना, कम प्रोपोर्शनेशन, याद है? डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा, वी हैव डन दिस इन रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है, एक बनता है 2, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। अगर 2 मिलके एक बने तो उसका नाम कम प्रोपोर्शनेशन। तो याद रख लो, दिस इज कम प्रोपोर्शनेशन इन विच 2 नाइट्रोजन, one is -3, another is +3, both join to give 0. It is कम प्रोपोर्शनेशन reaction. So this lab preparation is कम प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा है। आई एम टेकिंग रेडॉक्स, बेसिकली मैं जो भी सिखाता हूँ वो रेडॉक्स है, दैट इज अ शॉर्टकट आई एम गिविंग टू यू। आपको मैं लॉजिक वाइज लर्निंग, लाइक हाउ टू लर्न इन अ लॉजिक वाइज आई एम गिविंग यू एक्सप्लेनेशन। तो याद रख लो, लैब प्रिपरेशन इज विच मेथड? It's all of these are redox. In that lab preparation, it is which kind of redox? It is a कम proportionation reaction. What is meant by कम proportionation? Same element which is having 2 different oxidation number joined to give 1 unique oxidation number. तो देख लेना, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, उसके 2 different oxidation number है, दोनों मिलके एक बन गया N2 इसका उल्टा डिस्प्रोपोर्शनेशन, उल्टा मींस 0 becoming +3 and -3. तो दिस इज वन यूनिक वे। अगर जो लोग को लॉजिक समझ के पढ़ना है उनके लिए है, जो लोग नहीं, आई एम मोस्ट मेमोरी पावर आई हैव, आई कैन मेमोराइज लाइक एनीथिंग, तो यू कैन डू दैट। NaCl तो यूजलेस, जो भी बचा है उसको मिला दो, केमिस्ट्री में वही करते हैं ना, जो भी कैटायन एनायन बचा है उसको मिला के एक कंपाउंड बना के उसको साइड प्रोडक्ट बना के रख दो। तो you can say that in the lab preparation, who is the oxidizing agent? Nitrate ion. Nitrate ion is the oxidizing agent. It oxidizes ammonia into N2 gas. तो वो अमोनिया को N2 गैस बनाएगा। और in bleaching powder, in second method, bleaching powder is oxidizing agent. It oxidizes ammonia into N2 gas. तो in each case, either you see redox reaction in the form of कम proportionation और disproportionation, जो भी है। यहाँ भी देख सकते हो, ये भी आई थिंक कम प्रोपोर्शनेशन, ये भी यहाँ पे नाइट्रोजन -3 है और दूसरा वाला +3 है, दोनों मिलके 0, सेम थिंग, सेम अमोनियम नाइट्रेट, सेम ही तो है, अमोनिया दैट इज -3 और नाइट्रेट +3। तो जिनको थोड़ा रेडॉक्स आना चाहिए बेटा, 11th स्टैंडर्ड का रेडॉक्स थोड़ा आना चाहिए, याद है ना? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट यू स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड, दैट्स अगेन आई एम यूजिंग इट, बस समझ में आया ना? तो दिस इज बेसिकली रेडॉक्स आई एम टीचिंग टू यू। तो टेल मी विच इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर नाइट्रोजन इन विच यू गेट प्योर नाइट्रोजन? Barium azide. Barium azide easy to decompose and you get 98% nitrogen, so that is more highlighted in examination. This is about nitrogen. How? Now let us talk about compounds of nitrogen. ध्यान से देखना. One reaction is this about nitrogen का. Nitrogen का एक reaction है बहुत famous है. One chemical property you can take. Physical property तो उसकी बकवास है, I think. हाँ. Chemical property. एक ही बताऊँ, T बताऊँ. Property. Not T. This is very important. इस साल का नीट का क्वेश्चन है. This was this year's question. Okay, I think most of you have written. Now see, with respect to this, chemical property जो एक है. Okay. Now एक chemical property जो बहुत famous है, see this. Nitrogen का, how nitrogen react with calcium carbide. You know carbide. आप पढ़े हो already P block में 11th standard के. Carbon with metal is called carbide. तो ध्यान से देखना, if you heat this at high temperature, you know high temperature में you can break n triple bond n.
जहां भी नाइट्रोजन की रिएक्शन होगी बिना हीट सिंबल मत डालना, बिकॉज यू हैव टू हीट टू ब्रेक N2 बॉन्ड। N2 बॉन्ड तभी रिएक्ट करेगा जब उसको ब्रेक करोगे, रेडिकल फॉर्म में जो भी है, आप बोलते हो ना कहां से इलेक्ट्रॉन मिला, कैसे मिला, व्हाटएवर इट इज। नाउ सी दिस, ये इसके साथ रिएक्ट होगा। सी दिस, यहाँ पे आपने देखा है क्या हुआ है कॉन्सेप्ट। बेसिकली व्हाट नाइट्रोजन हैज डन, सी दिस, इसने एक कार्बन को भगा दिया है, गो आउट, देखो कार्बन भाग गया और वहां पे N2 जाके घुस गया अंदर। यू कैन सी दिस, इसलिए N2 इज फ्यूज्ड, कंपाउंड के अंदर उसको फ्यूज किया गया। यू नो फ्यूज्ड मींस अंदर रख देना, तो N2 को कंपाउंड के अंदर फ्यूज्ड किया गया और एक कार्बन बाहर भाग गया हाइड्रोजन के डर से। Because when N2 is coming, you know what carbon will do. Carbon is a small size element. N2 is a very big element, like big compound in front of. N2 is a big molecule in front of C. So it's like a fusion reaction. Fuse किया आपने और एक कार्बन बाहर भाग गया. Now what you get is a new compound. You have never heard of this compound. It's called calcium cyanamide. इसको cyanamide बोलते हैं. Okay. So this is a new inorganic compound है. Inorganic. This is purely inorganic. Cyano means you know CN. CN को cyano बोलते हो ना, cyanide बोलते हो. CN माइनस रहा तो cyanide. This is CN is there along with one more N. तो इसलिए इसका नाम cyanamide. तो cyanamide is CN along with one more N. और अगेन ध्यान से देखना, अगर इसको ऐसे मत अटैच कर देना, इसको थोड़े बच्चे ऐसे अटैच करने की कोशिश करते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? इसमें अजाइड है, दिस इज अजाइड, दिस इज कॉल्ड अजो, अजो, सो इट इज नॉट कमिंग अंडर साइनामाइड। साइनामाइड में N जो होगा दोनों N कार्बन के साथ होंगे, अगर इसको ऐसे अटैच कर दोगे ना, इट इज साइनो अजाइड, इट इज नॉट अमाइड। अजो मींस N बॉन्ड N, N बॉन्ड N इज अजो। अभी आप पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड आ गए हो आप लोग अभी बहुत सारे नए नेम्स पढ़ोगे। अजो मींस N बॉन्ड N, तो याद रख लेना। साइनामाइड में NCN, दैट इज साइनामाइड। ये इस बार का क्वेश्चन था, तो यू गेट कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन। तो कभी बोलना मत दिस इज लाइक ए फ्यूजन रिएक्शन, N2 इज फ्यूज्ड इन द कैल्शियम कार्बाइड, इट इज मतलब वो फ्यूज हो जाता है फार्मूला में, इट फॉर्म्स कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन एंड दीस टू मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर का नाम नाइट्रोलिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे आस्क्ड दिस, व्हाट इज नाइट्रोलिन, दे आस्क्ड। इस बार के नीट एग्जाम में यही था, यही क्वेश्चन था, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म। तो ऑप्शन नहीं था बेटा, सो obviously the student was so lucky, answer was not printed. So NEET first में इस question में answer print नहीं हुआ था, so it's a bonus marks. Whoever has attempted that question they got bonus marks. ये मत बोलना sir if I have not attempted you will not be given marks. Those who are attempted only will be given. तो इस बार का NEET का question था, उसमें ये option ही नहीं था, ये दोनों मिला के option में ये था, ये नहीं, because both has to be there. option में ये भी नहीं था, cyanamide भी नहीं था, उसने गलत फार्मूला लगाया, चारों में गलत फार्मूला थे। You know that जब गलत फार्मूला चारों में गलत हो गए तो वो ज्यादा ही गलत हो गया। It is they have done so much wrong because one formula should be correct. Even if you write wrong formulas, all the 4 wrong options, they have done so much wrong. No, it is nitrolim. Why we highlight nitrolim? Nitrolim को क्यों highlight करते हैं? Reason is only reason. इसमें जो कैल्शियम साइनामाइड मिलता है, it gives you new compound ammonia. अमोनिया फर्टिलाइजर, अमोनिया कैन यूज फॉर प्रिपेयरिंग यूरिया। याद रख लो, तो इसमें जो कंपाउंड मिलता है ध्यान से देखना बेटा, इट इज अ मेथड टू प्रिपेयर अमोनिया। वी हाइलाइट, व्हाई वी हाइलाइट कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड अमोनिया। दैट अमोनिया इज देयर, दैट्स व्हाई अमोनिया मिलता है इससे, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू गेट अमोनिया, so it's very important reaction. So you have to memorize this. No other way. आप क्या कर सकते हो बोलो, इसको कैसे पढ़ सकते हो? पहले नाइट्रोजन फ्यूज हो जाता है, कैल्शियम कार्बाइड में फ्यूज हो जाता है, इट गिव्स यू कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड नाइट्रोलिम. नाइट्रोलिम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट गिव्स यू अमोनिया ऑन हाइड्रोलिसिस। बिकॉज वो पूरा मिक्सचर नहीं, उसका जो कैल्शियम साइनामाइड है उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमोनिया मिलेगा, और वो अमोनिया रख के आप जो चाहो बना सकते हो। अमोनियम क्लोराइड बना लो, अमोनियम सल्फेट बना लो, यू नो फर्टिलाइजर, दिस आर ऑल फर्टिलाइजर्स। अमोनियम क्लोराइड फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर, यूरिया, यू नो यूरिया, आई थिंक आपको यूरिया का फार्मूला भी आता होगा। हाँ वेरी गुड, NH2CO NH2, बिकॉज लिक्विड सोल्यूशन में बहुत बार है न्यूमेरिकल्स में यूरिया। यू नो दैट यूरिया एंड एसिटिक एसिड बोथ हैव सेम मोलर मास, 60-60, इट्स अ मैजिक मोलर masses, 60-60, you know 60 ग्राम, उसका भी 60, you know molar mass of two different compounds can be same. Now say this, तो याद रख लो, so this is very important, you can like get some new compound from this. ये इस बार आया था, भूलना मत बेटा, जब भी नाइट्रोलिम, whenever somebody say नाइट्रोलिम, it is a mixture of calcium cyanamide and carbon. इस दोनों के मिक्सचर को ही नाइट्रोलिम बोलते हैं। That word you are supposed to know, what is नाइट्रोलिम and why नाइट्रोलिम is important, because नाइट्रोलिम में जो कैल्शियम साइनामाइड है उसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो यूरिया मिलेगा,
sorry, hydrolysis करोगे तो अमोनिया मिलेगा. That ammonia can be used to prepare urea. That ammonia can be used to prepare urea. So that is one of the use which you can have. This is about nitrogen, how it react with to give you some new compounds. और भी है nitrogen के और भी reactions है. We will see one by one. Now let us talk about compounds of nitrogen. The first compound, ammonia. I think before compounds, I will not be dealing with compounds. Wait for that. I will be dealing with hydrates first. Like oxides, we have to see hydrates. Hydrates देखेंगे first. Because ये repeated question है. इससे previous year question maximum आते हैं hydrates. इस group का highlight है. Hydrates is the highlight of this group. जैसे कि आप वहाँ पढ़ते हो ना S block में peroxide, superoxide. Like that, hydrates are the highlight of this group. Let us start with this. Now everybody know hydrates. इसमें properties. They will ask you only properties. See, I am writing first exception, then the normal one. पहले abnormalities, then normalities. This repeatedly comes in your exams. ये बहुत बार आता है repeatedly, and you can see 4 of them have same order. Correct? Thermal stability, basic nature, dipole, bond angle. First one is abnormal. Second one इन चारों का उल्टा. Correct ना? इन चारों का उल्टा हो गया. Let us start the trends. Boiling point में आप देख सकते हो. Now everybody know boiling point दो factors है boiling point में. एक van der Waals force, एक hydrogen bonding. जहाँ पे hydrogen bonding है वहाँ पे boiling point बहुत ज़्यादा होगा, वो abnormal होगा. Everybody know. और सबको पता भी होगा hydrogen bonding कौन-कौन बना सकते हैं. Everybody know. The element should be small in size and high electronegative element. 3 लोग हैं जो hydrogen bonding बना सकते हैं. Nitrogen, oxygen, fluorine. These 3 can form hydrogen bonds. You know, ammonia has hydrogen bonds. In case of oxygen, H2 has hydrogen bond. In case of fluorine, HF has hydrogen bonds. इन लोगों के अंदर hydrogen bonding है. You know, chlorine, bromine, iodine, they cannot form hydrogen bond. Even in oxygen group, sulfur, selenium, tellurium, polonium, they cannot form. In nitrogen group, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, they cannot form. Okay, hydrogen bond वो लोग नहीं बना सकते. You know, hydrogen bond means that is it is a bond between two NH3. NH3 के बीच में through HN, that is H of one NH3 and N of other. जानते होंगे ना हाइड्रोजन बॉन्ड. और हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ रॉन्ग नेम, दैट आल्सो यू हैव टू नो. इट इज मिसनोमर. इट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. देयर इज नो ग्रीन हाउस. कहीं है ग्रीन हाउस पेंटेड ग्रीनली एंड नेम कॉल्ड ग्रीन हाउस. सी दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ मिसनोमर, रॉन्गली नेम. वो रॉन्ग नेम दिया गया है ग्रीन हाउस. ओके, सेम थिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ रॉन्ग नेम. इट इज नॉट अ बॉन्ड, इट इज अ इंटरेक्शन. बॉन्ड कहाँ फॉर्म हुआ? बॉन्ड फॉर्म हो गया मींस तोड़ नहीं सकते हो मॉलिक्यूल को. वो तो आप तोड़ सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड को. हाइड्रोजन बॉन्ड इज द वीकेस्ट फोर्सेस. इवन डीएनए ट्विस्ट होता है, बस हाइड्रोजन बॉन्ड से जस्ट ट्विस्ट होता है, बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है. कहीं देखा आपने एक नीचे हेलिक्स से और दूसरे हेलिक्स से बॉन्ड फॉर्म हो गया? डीएनए बिकम क्या बोलते हैं डिस्क स्ट्रक्चर. इट्स अ कॉइल ना, क्या बोलते हैं? कॉइल कैन बी स्ट्रेचेबल कॉइल. दैट व्हाट यू से इट्स अ स्ट्रेचेबल कॉइल. नाउ सी दिस, ध्यान से देखना. हाइड्रोजन बॉन्ड ट्विस्ट कर सकता है. कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड से एक ओरिएंटेशन मिलता है मॉलिक्यूल को. मॉलिक्यूल पहले ऐसा रहता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के उसका एक स्टाइल मिलता है. हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोवाइड्स स्टाइल टू ए कंपाउंड. एक स्टाइल देता है उसको. एक 3 डायमेंशन में तू आज से ऐसा दिखेगा. ओके, डीएनए आप क्यों लाइक करते हो? इट हैज अ स्टाइल, इट हैज अ स्टेयरकेस, वैसे दिखता है, उसे आप लाइक करते हो. हाँ, इट लुक लाइक अ स्टेयरकेस. सो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोवाइड्स ए समथिंग 3 डायमेंशनल स्टाइल टू द मॉलिक्यूल्स. That's why it get famous. इसीलिए बहुत famous हो गया था उस जमाने में. Actually, hydrogen bond is a wrong name. It is not a bond. It is a particle interaction. उसके actual English is it is a particle interaction. Particle interaction. Let us enter into this. अच्छा, जहाँ पे hydrogen bond है वो abnormalities. वो कभी सामने भी आ सकता है, बहुत आगे भी आ सकता है वो. Because hydrogen bond आ गया तो क्या होता है सबको पता है. Molecule get associates. Everybody know because of hydrogen bonding molecular association. ये association अभी तो आप ये पढ़े हो. लिक्विड सॉल्यूशन वैन का 5 फैक्टर. यू नो दिस थिंग एसोसिएशन डिसोसिएशन. ये तो आप सबको आता है. डिसोसिएशन मींस डिसोसिएट होना. एसोसिएशन मींस यू नो डाइमर, टेट्रामर, ट्राइमर. वो वैन ऑफ में n है. डाइमर मींस n equal to 2. टेट्रामर मींस n equal to 4. यू डू दिस इन वैन ऑफ फैक्टर. ओके, नाउ सी दिस द सेम कांसेप्ट. यहाँ पे देखना आना था अमोनिया को पहले बट आया 3rd पोजीशन में. दैट्स व्हाई एब्नॉर्मैलिटी. ओके, आना था अमोनिया को पहले आना था बिकॉज देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल एसोसिएट्स. तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए. उसका आना था पहले. और आई विल टेल यू इज अ लाफिंग कॉन्सेप्ट फॉर यू.
वेरी रफिंग कॉन्सेप्ट, जस्ट गूगल में आप बाद में देख लेना, स्मार्टफोन तो सबके पास है। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? एवरीबॉडी नोस, ये लिक्विड सोल्यूशन में भी पढ़े हो आप, न्यूमेरिकल्स किए हो। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 373 केल्विन, दैट 100 डिग्री। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट शुड बी अमोनिया की बॉइलिंग पॉइंट? जस्ट अ गेस, just a guess. What should be the ammonia ki boiling point? If water is 100 degree, what should be ammonia boiling point? More than 100. Exactly. Now you expect more than 100. Shall I tell you? It's minus 10 degree. Boiling point of ammonia is so less. Just you open the bottle, ammonia will escape. Just ammonia का bottle जो लैब में है उसको ओपन कर दो, आपके लैब में नहीं, आपके लैब में जो रखा है उसमें अमोनिया ही नहीं है। See this? आपके लैब में जो अमोनिया का बॉटल है उसमें अमोनिया नहीं है, जस्ट बॉटल है होगा, मे भी कुछ और होगा। जो अमोनिया का जो फ्रेश बॉटल है, फ्रेश बॉटल जो लैब से इंडस्ट्री से लेते हैं, उसको जस्ट ओपन करना, दैट्स व्हाई टू ओपन द बॉटल यू नीड एक्सपर्ट। हंसना मत सर, टू ओपन अ बॉटल व्हाई नीड वी नीड एक्सपर्ट? बिकॉज अमोनिया हैज सो लो बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज हाई वेपर प्रेशर। अभी आप वेपर प्रेशर पढ़े हो आप, अरे यार राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन। अमोनिया के पास बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर है, जैसे ही ओपन करोगे वो फेस में आके मारेगा। To open that you need expert. You need expert who handle volatile liquids. याद रख लो, इंडस्ट्री में अमोनिया के बॉटल को ओपन करने के लिए भी एक आदमी है। ये मत बोलना, सीरियस, ये मत बोलना कि सर बॉटल ओपन करने के लिए why there is a guy? Because only for ammonia, to handle ammonia, the experts are needed. You can't shake the bottle. If you shake and open, you have gone completely. Because reason, vapor pressure जो अंदर डेवलप होगा वो बहुत ज्यादा डेवलप होगा, वो आपके ऊपर इतना फोर्स में उड़ेगा कि आपका यू नो दैट लॉट मेनी थिंग्स हैपेंस। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, लैब एक्सीडेंट के, बहुत सारे ग्लास, जैसे बॉटल टूट गया उसके ग्लास पीस सब फेस के अंदर चले गए। एंड टू रिमूव द ग्लास पीस इट टेक्स सम 3 to 4 years फॉर दैट स्टूडेंट। उसको पता नहीं था, उसने ऐसे बहुत सारा हिलाया अमोनिया। तो ध्यान से देखिए ना, he doesn't know that he took the ammonia bottle, he shake लेके वो सिरप बॉटल जैसे शेक कर रहा है। So because he, उसके माइंड में ये था, shake well before you। तो पूरा you know because of high pressure developed, the bottle was broken into pieces, it directly inserted into the face। So again I'm telling, आपके लैब में मुझे नहीं लगता प्योर अमोनिया होगा, मे बी 20 years back अमोनिया में भी kept। तो नॉर्मली जो फ्रेश अमोनिया का बॉटल होता है ना, never try to open, even you are going for higher studies ना MBBS, तो wherever फ्रेश अमोनिया बॉटल नेवर ट्राई टू ओपन, दैट्स व्हाई लैब अटेंडेंट इज केप्ट देयर। उनको पता है, और वो हिलाएंगे नहीं अमोनिया को, दे विल ओपन डायरेक्टली स्लोली दे विल ओपन बिकॉज़ प्रेशर इज डेवलप्ड इनसाइड। अमोनिया इज सो हाई वोलेटाइल, समझ में आया? एक्सेप्शन समझ में आया? अमोनिया के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर भी उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा है, बिकॉज यू नो दैट आप लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ते हो, जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है उसकी वेपर प्रेशर, हाँ ये तो उल्टा हो गया। अमोनिया इज एक्सेप्शन फॉर दैट, इवन दो इट हैज हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर भी उसकी वेपर प्रेशर कम है, उसका कुछ 0 से भी कम है बॉइलिंग पॉइंट, -5 -10 डिग्री। थिंक ऑफ, तो दूसरों की हालत क्या होगी? -20 होगा ना, तो दूसरों की बॉइलिंग पॉइंट तो उससे कम है, वो तो -15 -20 में होंगे। इफ दिस इटसेल्फ इज -10, व्हाट अबाउट द अदर गाइस? दे विल बी -20 -15 -25 डिग्री। थिंक अबाउट दिस, ये ग्रुप ही बहुत प्रॉब्लमेटिक ग्रुप है, हाईएस्ट वेपर प्रेशर ग्रुप आई कैन से। ओके, बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर ग्रुप इज दिस कंपाउंड्स। तो ध्यान से देख लेना। तो you are supposed to know that ammonia has a boiling point in 3rd position. Reason for that, actually ammonia का आना था पहले, वो आया 3rd position में। That means उसको आना था पहले, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके पास। That means हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद भी वो 3rd position में है। तो who overcomes? तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कौन ओवरकम कर लिया? वैन डर वाल्स। Because बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, हमारे बहुत बच्चे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। उन्होंने कहीं बुक में वो लाइन मेमोराइज कर लिया होता है, किसी से सुन लिया होता है उन्होंने। नो सर, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, इट इज द वीकेस्ट बेटा। वैन डर वाल्स उससे स्ट्रॉन्ग है, वैन डर वाल्स तो उससे स्ट्रॉन्ग है। हमारे बच्चे वही तो है, कहीं स्टेटमेंट देख लेते, कोई भारी बुक ले लेते हैं तो वो समझते हैं ये बुक ही मेरा बाइबल है आज से। तो याद रख लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द वीकेस्ट बेटा, दैट यू आर सपोज्ड टू नो। कभी वो डोमिनेट करता है बस, कभी कभी वो वैन डर वाल्स को डोमिनेट करता है, कभी नहीं करता है, दैट्स व्हाट। तो यहाँ पे वैन डर वाल्स, यू नो वैन डर वाल्स साइज के हिसाब से ज्यादा होता है, तो बिस्मुथ अच्छा इसके नाम भी है, इफ यू वांट आई कैन गिव नेम आल्सो। अमोनिया, यू नो, एवरीबॉडी नो अमोनिया। देन व्हाट इज pH3? बोलो नाम बोलो, टेल मी द नेम, टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एक एक का नाम बोलो। इफ दिस इज अमोनिया, व्हाट इज दिस?
दिस इज फॉस्फीन, अमोनिया नहीं है, इट इज फॉस्फीन। ये अमोनिया है तो बच्चे इसको अमोनिया बोलते हैं, इस फॉस्फीन। दिस इज अरसाइन, दिस इज स्टिबाइन, दिस इज बिस्मुथाइन। आइन लगा तो बस, दैट्स नथिंग एल्स। अमोनिया में अमाइन नहीं बेटा, अमोनिया। फॉस्फीन, अरसाइन, स्टिबाइन, बिस्मुथाइन। ओके, सी दिस, कुछ सीखने को मिल रहा है ना नए नए वर्ड, सो यू आर सपोज्ड टू नो दिस। दिस इज बिस्मुथाइन। तो याद रख लेना, यहाँ पे वैन डर वाल्स डोमिनेट, अमोनिया कम्स थर्ड पोजीशन, देन रिमेनिंग इज फुल वैन डर वाल्स। तो जो बड़ा होगा वो पहले आ जाएगा, बिस्मथ साइज में बड़ा है, यू नो दिस थिंग्स पहले, बाद में एंटीमोनी, तो अमोनिया थर्ड, उसके बाद अगेन साइज, यू नो साइज, आर्सेनिक बड़ा है, फॉस्फीन साइज में लोवेस्ट है। तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हिच इज हैविंग लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग ऑल दिस? फॉस्फीन। व्हिच इज हाईएस्ट? बिस्मुथाइन। अमोनिया कम्स इन third position. तो अमोनिया comes in third position, बिस्मुथाइन is the highest, फॉस्फीन is the lowest. बहुत सारे बच्चे फॉस्फीन को नहीं टिक करते हैं लोवेस्ट अमोनिया को टिक कर देते हैं। You have to be very careful, अमोनिया is not lowest, it is in third position. Phosphine is the lowest. Now say this. Remaining thing, there is no exception. आराम से आप कर सकते हो. That is the only thing which has exception. That means there is a competition between van der Waals and hydrogen bonding. Sometimes hydrogen bonding wins, sometimes van der Waals wins. That's an exception that we have to know. Now see this. अब ध्यान से देखना. Reducing property. See, you know reducing property किस पे डिपेंड करता है? Element और H के बीच के bond strength पे डिपेंड करता है. EH. I will write EH. What is EH means? Element and hydrogen के बीच का bond strength. E means element. M means metal. ये तो metal नहीं है ना ये लोग. They are not metals. All are not metals. तो I cannot write M. I will write E. E means elements. तो E और H के बीच का bond strength. तो everybody know. NH is more strong bond. pH weak. ASH weak. SBH weak. BIH very weak. क्यों? Bismuth is very large. Hydrogen is small. तो bismuth बड़ा है, एक एटम बहुत बड़ा है, दूसरा एटम बहुत छोटा है, तो बॉन्ड बहुत वीक बनेगा, आराम से ब्रेक कर सकते हो. Like HI, very good example. HI, iodine very big, H is very small. That way we say among hydroxyl acid, HI is the strongest acid. Even ये periodic property में भी पढ़ाते हैं, दो एटम्स की sizes. तो याद रख लो. तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? NH, tell me which is the strongest bond? Tell me NH, PH, ये सब which is strongest? NH. क्यों? Both are small in size. What about BIH? Because BI is big in size, H is small in size, so bond is easily breakable. तो BIH bond is easily breakable. आप देख सकते हो, इसीलिए वो आराम से टूट सकता है, वहां से H जल्दी निकल सकता है, इसीलिए हाई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. जहां से H जल्दी निकलेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग. और H क्या बन के निकलेगा? H माइनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो H प्लस बन के निकला तो एसिड प्रॉपर्टी, अगर वो H माइनस बन के निकला तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. यू नो हाइड्रेट इज रिस्पांसिबल फॉर रिड्यूसिंग कैरेक्टर, कभी भूलना मत. रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े होंगे, तो यहाँ से क्या निकलता है? H माइनस निकलता है. तो व्हेनेवर वी टॉक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इट इज H माइनस. व्हेनेवर वी टॉक एसिडिक प्रॉपर्टी, इट इज H प्लस. एसिडिक प्रॉपर्टी की बात होती है तो H प्लस, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात होती है तो H माइनस, कभी भूलना मत, बिकॉज H माइनस इज द रिड्यूसिंग इन एक्शन, हाइड्रेट. तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन EH bond enthalpy. तो E ऐसे बोलो ना, see generally you make a trend now. EH bond enthalpy decreases down the group. Make a note. EH bond enthalpy decreases down the group. EH bond enthalpy decreases down the group. This is how you make a trend. when आप खुद एक लाइन बनाओ ना, English make summary, make notes, form sentences. EH bond enthalpy decreases down the group. You know what is E stand for? Element. Hence BiH3 is a strong reducing agent. Hence BiH3 is a strong reducing agent. बेटा अभी केमिस्ट्री में आप खुद सेंटेंसेस, दो सेंटेंस, एक के लिए दो सेंटेंस बनाओ बस. I'm not saying like zoology 17 segment का है, 14 segment का है. This is like just 2 sentences in chemistry we need. Because अभी आपके बोर्ड्स में वही तो है ना, HOTS. You have HOTS in your board, you know that. Higher order thinking skill. HOTS है. In HOTS you have to write at least 1 or 2 lines. Sir. हाँ. सर आपने बताया कि EH bond decreases down the group. Yeah, very good. तो बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन है, BIH का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है यहाँ पे. बॉइलिंग पॉइंट में बॉन्ड एंथैल्पी की यूज कर रहे हो अकोला बेटा, प्लीज. बॉइलिंग पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम, बॉइलिंग पॉइंट में
मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं। बॉन्ड को मत तोड़ो, बॉइलिंग पॉइंट में हाथ पैर नहीं तोड़ते किसी का, प्लीज। किसी को जब आप सीरियस, लड़ाई में दो होता है ना, हाथ पैर तोड़ना तो मर्डर हुआ ना, वो लड़ाई नहीं हुई। आप मर्डर की बात कर रहे हो, मैं लड़ाई की बात कर रहा हूँ। लड़ाई में पिटाई होती है, मर्डर नहीं होता है। सेम थिंग, दैट्स व्हाट अकोला, दैट्स व्हाट यू आर मिक्सिंग मर्डर एंड लड़ाई, दिस टू। ओके, पिटाई मर्डर को नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते एक पिटाई हुई तो एक मर्डर हुआ है, नो, इट्स डिफरेंट। ओके, दैट इज द वे अकोला यू इमेजिन। सी दिस, बॉइलिंग पॉइंट में किसी का भी बॉन्ड टूटता नहीं है। एवरीबॉडी नो, ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? जनरली ए लिक्विड सॉल्यूशंस तो खत्म हो चुका है, आप लोग तो 4 चैप्टर में थर्रो हो, यू आर ऑल फिजिकल केमिस्ट्री किंग एंड क्वींस, so you should tell me what is boiling point of water? The liquid, मैंने एक बैच में पूछा था what is boiling point of water, ये आपकी नहीं पुरानी बात थी। The students say when the first bubble comes, see the temperature at which the first bubble is seen, that is boiling point. I told what about the second bubble? No, that is wrong sir, second bubble. So students say sir, because you boiled so much, that's why second bubble is coming. You should boil in such a way only you see one bubble. No, that is how you study boiling point, when the first bubble is seen. तो अकोला आपने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा है तो बता देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट में एक मॉलिक्यूल अलग से बाहर आना चाहिए। दैट मींस यू आर नॉट ब्रेकिंग बॉन्ड, यू आर ब्रेकिंग 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करते हो, हाथ पैर को नहीं काटते हो बॉइलिंग पॉइंट में। अगर आप बॉन्ड तोड़ोगे तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, कुछ और है, वो तो गए काम से। दैट मींस दैट इज समथिंग एल्स। तो इन बॉइलिंग पॉइंट यू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। अकोला आपको समझ में आया ना, बॉइलिंग पॉइंट इज बिटवीन मॉलिक्यूल्स, नॉट द बॉन्ड्स you break. Now see this, entering into this concept. Now, अच्छा वो वाला कुछ पूछ लिया था, थर्मल स्टेबिलिटी। Now you can see 4 of them, आप देख सकते हो चारों की प्रॉपर्टी सेम है। थर्मल स्टेबिलिटी, हाँ, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी में थर्मल स्टेबिलिटी ऑलरेडी आ गया। आप बोल सकते हो अरे आप अभी तो आपने बोला था EH बॉन्ड एंथैल्पी, तो EH बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो थर्मल स्टेबिलिटी आल्सो decreases down the group ना। तो अमोनिया is thermally more stable और बिस्मथ हाइड्रेट is thermally least stable। देखो बिस्मथ हाइड्रेट is least stable, क्यों? आराम से ब्रेक हो सकते हैं। That means I can say reducing property and thermal stability is inversely proportional। तो reducing property का उल्टा है thermal stability, very easy, because जो thermally most stable होगा उसकी bond enthalpy highest होगी, तो thermally least stable होगा उसकी bond enthalpy lowest होगी, वो आराम से टूट जाएगा। Thermally stable का meaning you know that, by supplying heat energy you break the bond, that's what. Now what about basic nature? Basic nature is a very tricky. सबका explanation same नहीं है, सबको same explanation मत use कर देना, because you are in HSC में एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, वहाँ पे सबके लिए एक ही आंसर लिखोगे। बच्चे करते हैं एक क्वेश्चन के लिए 3 अलग आंसर लिख के आए बच्चे, बोले सर whichever answer teacher want they can take. No, they will not do that. Never try to do that because teacher knows well. वो तीनों आंसर में तीनों को कैंसिल कर देंगे बात, तो आप वही आंसर लिखोगे जो करेक्ट है, जो एग्जैक्ट आंसर है वही लिखना। Now see, in the second case basic nature, let us enter into basic nature। यहाँ पे basic nature की जो बात होती है ध्यान से देखना। See this, when we talk about basic nature, it is Lewis base, you know Lewis base, याद है 11th standard, lone pair density, सेंट्रल एटम के ऊपर की लोन पेयर की डेंसिटी, जिसके पास सेंट्रल एटम में लोन पेयर की डेंसिटी ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है। यहाँ पे आप देखना। नाउ लेट अस टेक नाइट्रोजन फास्फोरस, टेक दिस। नाउ आप देख लो दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है। एवरीबॉडी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, व्हिच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नाइट्रोजन। तो लोन पेयर की डेंसिटी इसके पास ज्यादा होगा, इसके पास कम होगा। क्यों? बिकॉज़ ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन दे देगा, थोड़ा दूसरों को दे देगा, बिकॉज़ वो होल्ड करके नहीं सकता है। फास्फोरस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट कैन नॉट होल्ड द लोन पेयर टाइटली, वो थोड़ा लोन पेयर की डेंसिटी H को दे देगा। टेक, okay, you also take because you are all, I am not that much powerful to take from you. You take little bit. So phosphorus will give some of its electron to H, but nitrogen will never give its electron to H because it is the most electronegative element. You know, after fluorine, nitrogen comes. आपको periodic table आती है, Pauling's electronegativity scale. Fluorine के बाद nitrogen को highest बोलते हैं. So in that case, nitrogen takes all the electron, तो उसके ऊपर की density बहुत ज़्यादा है. So that's why it is more basic in nature. तो यहाँ पे basic का meaning Lewis basic nature, very important. So which is most Lewis basic? Nitrogen.
Why? It is more electronegative. बेटा यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट मत लगाना, यहाँ पे बच्चे लगाते हैं सर if nitrogen is most electronegative it should be acidic. नहीं, वो अलग ये अलग है. That is correct. It should be acidic. यहाँ पे लोन पेयर की डेंसिटी देखते हैं, किसके पास लोन पेयर की डेंसिटी ज्यादा है? नाइट्रोजन के पास ज्यादा है, फास्फोरस के पास थोड़ा कम है. क्यों? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो H को दे देता है. व्हाट अबाउट आर्सेनिक? उसकी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो H को दे देगा. मींस वो कॉर्नर एटम्स को दे देगा. जब कॉर्नर एटम्स को दे देगा तो उसके ऊपर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो बहुत कम हो जाएगी. तो याद रख लेना, which is most basic? Nitrogen. Why nitrogen is most basic? Because of its high electronegativity. It has high charge density. That is important. Please make a note. आप 2 लाइन इंग्लिश में लिख लो प्लीज. 2 lines in English about basic nature. Ammonia is most basic. Ammonia is most basic in the group 15 because nitrogen is the most electronegative element. Nitrogen is the most electronegative element. Hence it has high charge density on it. Nitrogen is the most electronegative element. Hence it has high charge density. Charge density की जगह electron density भी लिख लो. Very good. That is good word. Hence it has high charge density. That is electron density on it. So it can act as a good Lewis base. Good नहीं, strong डाल दो ना. It can act as a strong Lewis base. In that group, वो group के अंदर compared to not any other one, it is only with respect to that group elements. Hence it can act as a strong Lewis base. You know Lewis base का meaning, जिसके पास लोन पेयर की डेंसिटी ज्यादा होती है उसको हम Lewis base बोलते हैं. You know Lewis acid, Lewis base. Electron acceptors are Lewis acid, electron donors are Lewis bases. Okay, so this is with respect to nitrogen. ये समझ में आया ना आपको? जैसे जैसे down the group जाओगे, electronegativity of central atom decreases, hence they can't hold the lone pair. Hence density is not there that much. Hence electron density कम होती जाएगी central atom के ऊपर, तो उनकी Lewis basic nature भी कम होती जाएगी. Now, next important. What about bond angle? Bond angle देखो, bond angle is tough to explain, but यहाँ bond angle आप कैसे explain कर सकते हो? थोड़ा tough है उसका explanation. But one thing, bond angle decreases down the group. यहाँ पे exception बताता हूँ. I don't know how many of you know this exception in your 11th standard. You may not have studied, maybe I think. किसी एक सेंटर को पता होना चाहिए, किसी एक सेंटर को maybe hardly know. पता होगा. यहाँ पे आपको पता होगा, group 15th elements doesn't undergo hybridization. ये statement सुना है आपने 11th standard में? सुना नहीं है, तो this is the secret. Now you can know in 12th standard, group 15th elements में यहाँ पे देखना, phosphine से लेके यहाँ तक there is no hybridization. It's a miracle thing which you are supposed to know. Phosphorus से लेके नीचे तक उनके hydrates में no hybridization. In group 15th elements, group 15 में nitrogen only show hybridization. Phosphorus में only in hydrates, वो भी मैं highlight कर देता हूँ. Not in halides, not in oxides, only in hydrates. Group 15, in group 15 hydrates, except ammonia, all other remaining hydrates doesn't have hybridization. They don't have hybridization. उनके पास hybridization नहीं है. अमोनिया के बाद हाइब्रिडाइजेशन है, बिकॉज आप पढ़ते हो अमोनिया के बारे में VACPR थियरी. अच्छा सा देखना, अच्छा सा गौर करना. आपको 11th स्टैंडर्ड में कोई भी टीचर आपको PH3 के बारे में नहीं बताएंगे. PH3 they will not tell. If you ask also, either they will skip or they will tell no बेटा ये कहीं पे आएगा आपको 12th पे, because they want that you to know in 12th standard के this is not having hybridization. तो बोलो कहाँ से कहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं है? फास्फोरस उनके हाइड्रेट्स पे नहीं है. फास्फोरस के हाइड्रेट से लेके बिस्मथ के हाइड्रेट्स तक there is no hybridization. It was given by a scientist called Dragos. Dragos बोल के एक साइंटिस्ट है. Dragos. He has told this, not me. मैंने कुछ नहीं कहा, जो भी है it blame goes to Dragos. Dragos ने बोला है. I don't know how many of you know this Dragos rule. उसका रूल है Dragos rule. Drago scientist has told this rule. There is no hybridization from phosphorus to bismuth in its hydrates. उसका रूल है Dragos rule. ये 11th पे नहीं चलाते बच्चों को, because डर जाते हैं, because पहले तो उनके लिए hybridization नया है,
उसमें अगर ड्रैगो सेलेक्ट डाल देंगे तो बिल्कुल और नया है. You know that what will happen there? They will start refusing to study hybridization then. वो पढ़ेंगे भी नहीं जो आता है. अब आप पढ़ सकते हो. Now 12th standard, you are all 12th standard. Now whatever I tell, now you know that chemistry is a subject full of exception. अब तो पता चल गया होगा. Chemistry is the only subject which has exception I think. Okay, now say this. समझ में आपको? तो just like that you study bond angle decreases. यहाँ पे कुछ explanation नहीं दे सकते क्यों? Hybridization ही नहीं है तो काहे का bond angle? बट ये मत बोलना सर बॉन्ड एंगल कैसे आ गया. हाइब्रिडाइजेशन नहीं है बस. यू नो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप. यू नो देयर आर टू ऑर्बिटल्स, वन इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, वन इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. सो यहाँ देयर इज हाइब्रिडाइजेशन ओनली इन अमोनिया व्हिच यू कॉल sp3 पिरामिडल शेप. दैट मींस इसमें किसी ने पूछा तो वी डोंट नो बिकॉज़ देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन एज सच. उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ. तो याद रख लो. तो ओनली वन क्लिक पॉइंट बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ओके जस्ट यू कैन इमेजिन एज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. उसके एक्सप्लेनेशन मत देना क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन नहीं है वहां, इसलिए आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन है तभी आप बॉन्ड एंगल बोल सकते हो. नाउ से दिस अमोनिया का सबको आता होगा बॉन्ड एंगल. अमोनिया एवरीबॉडी नो 107 आई थिंक. यू नो दिस ना. मीथेन इज 109, अमोनिया इज 107 एंड वाटर इज 104 104.5 बिकॉज ऑल दिस थ्री हैव sp3. एक 4 बॉन्ड पेयर है, दूसरा 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर है, थर्ड इज 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर. आता होगा आपको थोड़ा तो 11th स्टैंडर्ड. यू कैन रिकॉल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज 11th स्टैंडर्ड. नाउ सी दिस इज यूनिक थिंग. बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इज एनफ. रीजन इज यहाँ एक मिरेकल रीजन है. इन चार है ना, इन चारों का बॉन्ड एंगल लगभग सेम है. इसका 93 है, इसका 92 है, इसका 91 है, इसका 90 है. सी द मिरेकल 1 डिग्री लेस. ऐसा कभी हुआ ही नहीं है केमिस्ट्री में. नॉर्मली बॉन्ड एंगल दो कंपाउंड्स की कभी भी मैक्सिमम यू सी सम 10 डिग्री डिफरेंस होगा, सम 4 डिग्री डिफरेंस होगा. यू नो इवन वाटर इन दिस केस आल्सो फ्रॉम 4 डिग्री 5 डिग्री डिफरेंस. इट वाज सो मिरेकल दैट 1 डिग्री डिफरेंस. अमोनिया में 107 है, फॉस्फीन में 92 है. सो दिस इज 92 and 93 समथिंग. दिस इज 92, दिस इज 91, दिस इज 90.5, दिस इज 90. यू सी दैट डिग्री डिफरेंस. कभी 1 डिग्री डिफरेंस, कभी 0.5 डिग्री डिफरेंस. दैट मींस वहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं है. वो क्लियरली पता चलता है. बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन रहता तो 5 डिग्री डिफरेंस पे आता, कुछ ना कुछ डिफरेंस आता. 5 डिग्री डिफरेंस, 4 डिग्री डिफरेंस. हाइब्रिडाइजेशन नहीं है. दैट्स व्हाई ऑल ऑफ देम हैव सेम शेप. All of them have same shape and all of them want to be look like same. That's why their angle is also similar. Approximately they are similar. गया आपको concept? This is a Dragos rule. So according to Dragos rule, tell me which element to which element will not have hybridization? In its which compounds? Hydrates. From which group? कौन से group से? 15th group. Which element to which? Phosphine to bismuthine. वहाँ पे आपका hybridization नहीं है. Okay, हाँ. Hybridization क्यों नहीं है? अच्छा, it's a very tough question. I will give you. आप भी imagine करो hybridization क्यों नहीं है? It is a very good question. We're asking. It's a very tough question. Let's you also imagine क्यों नहीं होगा? कोई बोल सकता है मुझे hybridization क्यों नहीं होगा? You also tell me ना. Say this. Akola, you can debate with me. Yeah, have a good debate, healthy debate. They are asking. See this. Students are asking why hybridization नहीं है phosphine में. क्यों नहीं है? phosphine में क्यों hybridization नहीं है? Of course, वो ड्रैगो का रूल था. हाँ. Sir, because orbitals में size का फर्क है. Very good. That's the answer. Very good. उन्हें आंसर दे दिया. See this. Phosphorus का, you know that phosphorus is outermost orbital. कौन सा है? देख सकते हो ना phosphorus का. अभी तो electronic configuration लिखा था. 3s2 3p3. But hydrogen तो 1s है बेचारा. 1s छोटा है. 3s 3p साइज में बहुत बड़ा है. तो 1s और 3p मिक्स नहीं हो सकते. That is the logic. तो 1s cannot mix with 3s 3p because 3s 3p size is very big. 1s size is very small. A very small orbital cannot mix with very large orbital. तो no hybrid orbital generation. Okay, hybrid orbital बनने के लिए जो atomic orbital mix होते हैं उनकी size थोड़ी लगभग सेम होना चाहिए. ये आप पढ़े होंगे. उसको आप कुछ नाम भी बोलते हो. Matching symmetry ऐसा कुछ नाम भी है. You studied in 11th standard LCAO method, linear combination of atomic orbitals. LCAO method, NCERT. I'm talking NCERT English only. It is there in NCERT LCAO method, linear combination of atomic orbitals. Okay, तो याद रख लो. Akola I think has said the correct answer. So phosphorus or hydrogen, ये no problem. Nitrogen no problem because 2s2 2p3 can mix with 1s. 1s, ये 2s or 1s, not that much difference. But 3s 1s, so much difference.
इसीलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बन सकते। अगर उनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन भी जाएंगे तो वो वीक है, टूट जाएंगे। बनेंगे टूट जाएंगे, बनेंगे टूट जाएंगे, तो इज इक्वल टू ना बनेंगे। तो बन के टूट रहे हैं तो उसको ना बने बोल दो ना, करेक्ट ना? जो बन के भी टूट जाते हैं वैसे बन गए। Now see this. So this is about bond angle. Last, dipole moment. Entering into dipole moment, dipole moment decreases. Everybody know why dipole moment decreases? ये तो बहुत easy है. Polarity of the bonds. Nitrogen is the most electronegative, तो most polar. Nitrogen is the most electronegative, so dipole moment depends on polarity of the bond. Dipole moment depends on polarity of the bond. Nitrogen is the most electronegative, so the bond is more polar. NH bond is more polar. Or bismuth is the least electronegative, so BiH bond is least polar. याद रख लो, डाइपोल मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। NH bond is more polar because of more electronegativity difference between N and H, hence high dipole moment. BiH bond is the least polar because of less electronegativity difference between Bi and H, hence it is least polar. समझ में आया आपको? So I will finish here. The remaining properties we will see in the next class. Hope so. I think you understand.